FOM means what? It means fundamentals of mathematics. Fine. What all we cover in this section? See, first of all, we have inequalities, right? Inequalities, all the kind of inequalities here. So the very basic is our first is our algebraic inequality. Algebraic inequality. You better know algebraic inequality. How to solve this? With the help of Wavy curve method. Yes, you know Wavy curve method. Wavy curve method. Very easy. Very easy. I hope so. You are aware of it. For the sake of completion, let me make you solve one question. X minus 3 into x minus 2 upon 2 minus, okay, make it 4 minus x should be greater than or equal to 0. How to solve this? You can do one thing, that first of all, the very first step is make all the expressions in the form of x minus alpha, right? So if I do like this, I will make it as x minus 3, x minus 2, and divide by x minus 4 should be less than equal to 0. Why? Because I have multiplied negative number on both the sides of inequality, right? And here if I see, if I draw a number line, so if you see here, we are having our roots as 2, 3 and 4. And yes, students, if you see, all the expressions are having an odd power. So if any of the expression would have an even power, then the sign corresponding to that root should not change. I have taught you this, right? But here, since all the powers are odd, every time the sign will change: positive, negative, positive, negative. Hence our answer will be simply what? Minus infinity to minus infinity to union, union what? Just a minute. Union 4 to 4 to infinity. Now again, the point comes, where should the equality come? This can be equal to 0 at 3 and 2. So at 2 there will be equality, and at 4 there will be, sorry, at 2 there will be a closed continuous bracket, and at 4 there will be an open continuous bracket. This is very easy, right? This is very easy. Moving forward to our next kind of inequality, inequality 2, and that is inequality 2, that is quadratic inequality. Quadratic inequality. Quadratic inequality. Very easy. Once again, quadratic expression is in the form of what? Ax square plus bx plus c. How to solve this? In this kind of inequality, the very first step is that you have to find the discriminant for it. Discriminant, which is equal to b square minus 4ac. D is greater than 0 implies that the expression can be broken, this whole expression can be broken in the form of x minus alpha into x minus beta, where its roots are alpha comma beta. Dear students, if you are able to break a if you are able to break a quadratic equation in the form of its root, you have just converted that quadratic equation into what? Into an algebraic expression. You can solve it, right? Right. But if d is equal to 0, this means there is repeated roots. Repeated roots, yes, means repeated roots. And d less than 0 means what? See, if d less than 0, if a is greater than 0, fine. For example, the very first step what we do in a quadratic inequality is that we make a greater than 0, right? We make a greater than 0. How? By multiplying minus 1 on both sides. Or if it is already greater than 0, we have no problem with that, right? So if you see here, d less than 0, and if we say that a is greater than 0, so a is greater than 0 and d is less than 0, this implies that the quadratic expression ax square plus bx plus c, this will always be positive, dear students. Always be positive. Always be positive, right? So we have covered till here. I hope so everybody is clear with it, right? सबको सबको समझ में आ रहा होगा? Yes or no? यस, बिल्कुल सर, सबको समझ में आ रहा है। हमें कोई भी दिक्कत अब तक नहीं हो रही है, राइट? अब तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। फाइन, हाँ, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस वाज quadratic inequality. Let me make you solve one example on it. See, x square plus 1 plus 2x into x square minus 2x minus um, plus 8 upon x square minus x minus 2, right?
So let's say this is greater than equal to 0. So first of all, we'll ensure that everywhere the a is greater than 0. That is, the coefficient of x square is greater than 0. That we should have to ensure. So we have ensured here that a is greater than 0. See, coefficient of x square, everywhere it is greater than 0. So what we'll see, we'll find the d of discriminant of each of the expression. If you see the d here, it is b square minus 4ac. Okay, so b square minus 4ac, the d is 0 here. If you see the d here, the d is b square minus 4ac, it is somewhat negative. And here if you see the d, b square minus 4ac, it is positive. So I have just taken this example in order to cover all the kind of quadratic inequality which can come, right? So here in this expression, if you see here d is equal to 0, that is there will be repeated roots. And you can see also that this whole expression can be written as what? X plus 2 ka whole square multiplied by, dear students, x square minus 2x plus 8, this is negative. Now d is negative and a is positive. If d is negative and a is positive, dear students, this is the case. The quadratic expression is always positive, dear students. Hence, we can say that this expression is always positive. So we can divide both sides by this expression, and hence this will become 0, dear students. If I take it here, it will become 0. And here we can break it. How? See, we can break it like this. X square minus 2x plus x minus 2. Dear students, this is greater than equal to 0 implies x plus 2's whole square upon, if you break here, x minus 2, and if you take x common here, x plus 1, dear students, this is greater than equal to 0. If you here make a number line, here, this is Viveka method once again. You'll get what? Minus 2 minus 1, here you'll get 2 plus minus, no, now see, minus 2 is having a even power, right? So the sign will persist here. So the sign, it will retain its sign, right? So 2, then here minus, then here plus, and since it is plus, there will be again a plus. Why? Just because x plus 2 is having an even power here. And hence if you solve this, you can get what? Minus infinity to minus 2 minus, sorry, minus 2 to first of all, don't apply any bracket anywhere, right? 2 to infinity. After that, see, infinity and minus infinity will always have what? Open bracket. And if you see here, okay, x plus 1 whole square, sorry, x plus 1 whole square, yes, x plus 1 whole square, yes, this is, this went wrong from my side. Yes, so this again became a very good question. Why? Because since you'll remove it like this, the moment you do this, there will be an x not equal to minus 1 thing here, right? So r becomes what? X plus 1 upon x minus 2 greater than equal to 0. You'll solve it, you'll get minus infinity to minus 1 union 2 to infinity. And you'll know what, greater than equal to 0, there will be an open sign here also, here also, here also. Why? Just because x is not equal to minus 1 here, and x can't be equal to 2, just because the new denominator will be what? 0, which is not possible, right? So this was our whole case, and this is our what? Quadratic equation, dear students. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है जी सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा लॉगरिथमिक आ जाओ। लॉगरिथमिक कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आओ जाओ लॉगरिथमिक पे, लॉगरिथमिक पे, ठीक है, लॉगरिथमिक पे। ये सब चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे मैक्सिमम छोड़ के जाते हैं और जिससे इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आओ लॉगरिथमिक देख लो। लॉगरिथमिक में एक एक पहले तो लॉग का एक वो आपको करवा देता हूँ। जैसे लॉग ए बी है, व्हाट इज इट्स डोमेन? व्हाट इज इट्स डोमेन? its domain is its domain is that the b should be greater than 0 and a should be greater than 0 and a should not be equal to 1. These are the three conditions for domain. So if I say that we are having a question, let's say question which says that log of x plus 2 into x is greater than 2. How can you solve this question, dear students? You'll say that, sir, this question is not very tough. First of all, the step one for all kind of these questions is that we have to find the domain of this log expression. So this log x plus 2 and here x, the domain for this expression was x greater than 0 and x plus 2 greater than 0 and x plus 2 not equal to 1, dear students. And here if you see x greater than 0 and x greater than minus 2 and x not equal to minus 1, dear students. From here if you draw the intersection thing, so you'll get what? 0 to infinity is our domain. 0 to infinity is our domain. If 0 to infinity is our domain, then you can very easily do one more thing, that now
Now you know one thing. See what? If log a base b is present, right? If our a is less than 1, then what we do? Then b, the sign flips a raised power 2. Yes, yes. And if this a is greater than 1, then this sign retains. This property, I guess you maybe know, must be knowing, right? You must be knowing. And then if you see here, what can we do here? See, कुछ नहीं करना है. अब क्या करना है? हम ये पता है. हम क्या करेंगे? हम दो केसेस बना लेंगे. हम स्टेप 3 में क्या करेंगे? सी हमारे पास क्या है? लॉग x प्लस 2 एंड x ये है ग्रेटर देन व्हाट 2. तो हम यहाँ पे दो केसेस बना लेंगे. फाइन. द केस वन विल से व्हाट दैट x plus 2 is greater than 1, right? So if this is greater than 1, then this whole expression can be written as what? See, log base x plus 2 and x, this can be written as x is greater than x plus 2's whole square, dear students. And case 2 says that x plus 2 if less than 1, then x can be written as less than x plus 2's whole square, because sign flips when the base is less than 1, sign retains when the base is greater than 1. I hope so you people are aware of all these things. X square plus 4 plus 4x plus 3x is less than 0, right? So if you calculate b square minus 4ac, it is greater than 0. So you'll get two roots from here. And if you solve here, you'll get what? Again the same thing. X plus 4x plus, okay, sorry, plus 4 uh, plus 3x plus 3x greater than 0. See, solve this expression, take intersection from this. Solve this expression, take intersection from this. Now see, you'll get here something, let's say this. You took intersection from this and you get your solution 1. You got something from here. You take this something's intersection with this condition, you will get an s2, and then take s1 union s2. And once you got s1 union s2, make an intersection of this whole statement with the domain of the question, dear students. This was our domain. So what you have to do? First you have to find the domain of the question. See, on fingers, what you have to do? You have to find the domain of the questions. We found the domain of the questions. Yes sir, I found the domain of the question. Now what? Now just look at the base, whether the base is greater than 1 or the base is less than 1. If the base is greater than 1, then the sign of the inequality will retain. If the base is less than 1, then the sign of the inequality will flip. Hence, make two cases. Under one case solve one thing, under second case solve second thing, and then take the what intersection of case 1 solution with the case 1's condition, the case 2 solution with the case 2's condition, then take their intersection, and then take the entire intersection of this thing with the domain itself, right? If you're not clear with everything, I can make it solved, right? If I do here, what are the roots? I'll be getting minus 3 plus minus root over b square minus 4ac. Oh no, dear students, one more important thing here. Okay, one more important thing. If you see here that d is less than 0, dear students, d is less than 0 and a is positive, dear students. So what does that mean? This means that this expression is always greater than 0, because I've taught you this condition. Hence this is less than 0, this means x belongs to phi, and here this is greater than 0, this means x belongs to r. And x belongs to phi's intersection with the condition that x, this condition is what? X should be greater than minus 1. The the answer will be x belongs to phi, and intersection will be what? X belongs to phi only. There's nothing in common. And x belongs to r's intersection with x. This condition is what? X should be less than minus 1. The same condition will come here, because the intersection will be what? Minus infinity. So minus 1, dear students. Yes. Yes, yes. So the final union for these two will be minus infinity to minus 1, and its intersection with the domain that was 0 to infinity. Hence, we'll get our answer as what? Hence, we'll get our answer as what? Phi, because nothing is in common. Because this question was self-framed right in the session, that's why the answer came as phi. Although this answer phi can come in the examination also, because students think that phi can't be the answer of a question, but this is not always true. Phi can also be the answer, right? Mm, this is 8, dear students. Let me move forward to the last kind of inequality, which is very important for
nest, and that is modular inequality, students. Modular inequality. What does modular inequality says? Modular inequality says that mod of x is greater than or equal to a. What does this implies? See, dear students, let me make you visualize this. What is mod of x? Mod of x is basically the distance of x from the origin. What is mod of x? Mod of x is the distance of x from the origin. What is origin? 0 comma 0. Let's skip origin. On a number line, mod of x is the distance of x from the starting point or from the origin. In straight line also there is an origin, the midpoint. From here all the numbers are positive, here all the numbers zero, which we write as 0 on the number line. So the distance of the when I say distance, it is not displacement, it is distance. Distance is always positive, length is always positive, right? So length is always positive. So I'm saying that mod of x is the length of x from the a, right, dear students? So here if we see, mm, okay, so this here, if I'm saying that this distance is greater than a, this is possible if it is on the negative side or it is on the positive side. This you don't need to remember. Why? See, this is what you say, a number line. This is 0, this is minus a, and this is a. If I want my x distance to be greater than what? To be greater than a, so either it can be this or it can be this. Why? Because the distance is always positive, we can go on either side, here also, right? So this is our case for. And now what is this case? What is this case? That means it should be less than or equal to a. So dear students, if I want my x to be less than a, either it should be here or it should be here. So we can write it as x should belongs from should belong to minus a to a, dear students, in between them, right, dear students? Yes, sir. Everything is clear to me, and thank you so much. Yes, great, super. So हेलो हेलो, क्या सबको बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर, अब तक जितना समझ आया सब कुछ समझ में आया। ग्रेट, सुपर, सुपर। तो अब तक हमने इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया। वी कैन टेक अ क्वेश्चन ऑन इट, बट आई होप सो पीपल आर फेमिलियर विद द मॉड्यूलर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। थिंग्स आर क्लियर टू यू, फाइन। Let's go to after this functions is very sorry, first of all let's go to relations, because easy question from relation comes, and relations, right? What is relation? relation is Relation is a set that relates to sets. Relation is a set that relates to set. Just a minute. So what is relation? Relation is a set that relates to different sets, right? So if I say that relation is relating A to B, so this is the way of representation, R such that A to B. Here, relation is a set which is relating this A set to this B set. This A set is known as domain, this B set is known as codomain, right? And what, dear students, this relation R is a subset of A cross B. What is A cross B? This A cross B is the Cartesian product. Cartesian product. What is Cartesian product, sir? What is Cartesian product? Um, if I say that A is equal to 1, let's say A is equal to 1, 2, 3, and B is equal to 4, 5. So the Cartesian product of A cross B will be, dear students, what? You can do it by yourself. What? 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. Yes, dear students? Yes. बिल्कुल सही है, right? And dear students, the number of elements in A cross B, that is Cartesian product, is always equal to what? N1 into N2. What is N1? Number of elements in A, number of elements in A. And what is N2? Number of elements in B, number of elements in B. Yes, बिल्कुल sir, right, right sir, बिल्कुल sir, सही बात है आपकी. So here there are 3 elements, here there are 2 elements. So the total number of elements that are possible in number of elements in A cross B, that will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, the 3 into 2 times, right? यस सर, समझ में आता है मुझे, इतनी बातें मुझे समझ में आती हैं सर, ठीक है, ठीक है। तो आर इज अ सबसेट ऑफ दिस, और ये सारी बातें हमको समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है? चलो और आगे बातें देखते हैं, और एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको इस पे, देख लूँ और दो बातें कुछ बची हैं क्या, फिर आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ।
Mm, 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 mm. Yes, yes. Relations. If I say, mm, 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 अब सही है. There's nothing left in the introduction portion here. One more thing which I wanted to tell, that see, R is a subset of A intersection B, A cross B, right? R is a subset of what? R is a subset of what? A cross B. What is A cross B? What is A cross B? Uh, A cross B means Cartesian product. So the number of relations that is possible, yes, of course, आप लोग यही सोच रहे हो कि सर ने number of relation नहीं करवाया. बिल्कुल. नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? देखो, नंबर ऑफ रिलेशन इज, एक बात बताओ, if a set is having n elements, 1 2 3 4 dot dot n elements, so how many subsets of a is possible? 2 raised to power n. Yes, 2 raised to power n is possible. So how many relation is possible? Number of relation is possible. How many relations are possible? The number of elements that are present in a relation is n1 into n2, dear students. This is the number of elements present. Yes, so the number of relation will be 2 raised to power n1 into n2. Since if the number of elements in A is n, then the number of subsets in A is 2 raised to power n. In the same way, if the number of elements in the number of elements in a relation is n1 cross n2, then what? The number of subsets of the or we can say the number of relation possible is 2 raised to power n1 into n2, right? डियर स्टूडेंट्स, यस सर, बिल्कुल समझ में आती है मेरे को बात. अच्छा, अब देखो, एक ये वाला टॉपिक है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. पहला है आइडेंटिटी. आइडेंटिटी रिलेशन. सी, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड लेट्स फ्रॉम ए टू ए. व्हाट इज A to A? A to A defined relation means that the domain is also A and codomain is also A, right? If it is relating same sets, that is A to A, right? So here, if you see, dear students, if I say that a relation R is defined from A to A is identity when 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 only elements like A comma A is present, such that A belongs to, what is this? What is this? This means that if A set is, let's say, 1 4 8, so our relation should be such that it should only contain elements like 1 1 4 4 and 8 8. If it is containing any element other than these elements, then it will not be identity. Will not be identity, right? Till when it is identity? Till it is having elements like A only, right, dear students? Similarly, if I ask about the next kind of, that is reflexive. There's something called reflexive relation. What is reflexive relation? It states there's a minute difference between a reflexive and a identity relation, which you must remember. When is it reflexive? When it is reflexive, see, the only difference between a reflexive and see see what is the uh, what does this means? What is the difference between the identity and the reflexive relation? A question on 2007 nest came strictly on this. That was a multiple choice question, I guess, not 2017. It was last 2020 session 1. 2020 session 1, if you see, there was a question in which there was a multiple correct question in which you were asked about identity, symmetric, transitive, all kind of relations, right? And you were asked to given a function, given a set, and you ask the relation, right? So these are very important. The minute difference between reflexive and identity is that reflexive relations say that all the elements of the kind of A comma A should be present. But if apart from these elements, any other element is present, then I am having no problem with that. What does this mean? This means that reflexive relation wants that elements of the kind A comma A should be present. But if any other element is also present, then I am now having no problem with that. But identity relation says that only element of the type A comma A should be present and no element apart from the type A comma A should be present. Is that clear, dear students? Yes sir, बिल्कुल clear है. Yes sir, बिल्कुल clear है. इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. तो आओ एक और रिलेशन कर लेते हैं. That is symmetric relation. Symmetric relation. Symmetric relation. What does symmetric relation says? Symmetric relation क्या कहता है? Symmetric relation कहता है कि if
A comma B belongs to R, then B comma A should belong to R. This is symmetric relation. If A comma B belongs to R, then B comma A should also belong to R. That's it. That's it. That's what does this say? That if A comma B belongs to R, then B comma A should also belong to R. That's it. Nothing else. Nothing else. If B comma A comma B belongs to R, then B comma A also belongs to R, right? But there is another relation that is anti-symmetric. I guess anti-symmetric and identity, these are not in NCRT. Here it says that no, not even a single alpha beta and beta alpha should be present. Should be present. What does this mean? This means that एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें अल्फा बीटा एक भी सेट ऐसा नहीं होना चाहिए. Relation should not be of the kind that it should contain among one of alpha beta and beta alpha. Listen, क्या होता है? Antisymmetric relation says that among alpha beta and beta alpha there should be only one that should be present. Among alpha beta and beta alpha only one should be present. This is not way of writing correctly. This is not written correctly. The correct statement is that only one among alpha beta and beta alpha should should come, right? मतलब alpha beta और beta alpha में there should be only one. Let's say we are taking one example. See जिससे कि मैं एक सेट कहूँ A is a set which contains what 1 comma 1 2 comma 3 3 comma 2, right? And this is a set B 2 comma 3 3 comma 4 4 comma 3, right? Right. Now see this A set. See 1 1 is present, 1 1 is also present, right? So this is perfectly all right. 2 3 is present, hence 3 2 is also present. So this is symmetric. Yes, for sure symmetric. Is this anti-symmetric? No, this is not anti-symmetric. If I say this, is it symmetric? See 2 3 is present, but 3 2 is not present. It is not symmetric. It is anti-symmetric? No. Why not? Because 3 4 and 4 3, only one among them should come. There it should not be that both alpha beta and alpha beta both alpha beta and beta alpha can come, right? Yes, that among one only. So what is and why it is not anti-symmetric? Because 3 4 and 4 3 came, which was not possible, right, dear students? Yes. Okay, so there was a question in again next 2020 session 1 also, which said that symmetric and anti-symmetric relation, वो क्या पूछा था वहाँ, इंटरसेक्शन पूछा था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स. मतलब एक सिमेट्रिक सेट है. देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये देखो एक चीज मैं साथ में बताऊं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे मैं कहूँ कि एक सेट में एक सेट में दे दूं इसमें 1 4 5 है, ठीक है, 1 4 5 है. तो इस सेट R से आई एम डिफाइनिंग रिलेशन R1 एंड आई एम डिफाइनिंग रिलेशन R2. R1 is my symmetric relation and R2 is my anti-symmetric relation. So what will be R1 intersection R2? Or let me say what are the number of elements in R1 intersection R2? See, see. If I ask you what is R1 here, you can say what 1 1 4 4 5 5. Then you can say 1 4 4 1 4 5 5 4 1 5 5 4. All these kind of will come here. Let me write it here. What kind? 1 4 4 1 1 5 5 1 4 5 5 4. Relation R2. Relation R2 is what? It is a what? It is a anti-symmetric relation. 5 5. Fine. Now see 1 4 4 5 1 5. This is an anti-symmetric. If I ask you R1 intersection R2, you'll say what? 1 1 4 4 and 5 5. This is very important, dear students. This is very important.
ये है इसका इंटरसेक्शन, मतलब जो एलिमेंट हैं एक के, अगर वो रिपीट कर रहे हैं, जैसे 1 4 5 है, 1 1 4 4 5 है, ये सिमेट्रिक भी है और ये एंटी सिमेट्रिक भी है। क्यों? क्योंकि दोनों की डेफिनेशन फॉलो करता है। हाउ? सी, सिमेट्रिक सेज दैट इफ अल्फा बीटा इज प्रेजेंट देन बीटा अल्फा शुड बी प्रेजेंट। देखो 1 1 प्रेजेंट है तो 1 1 भी तो प्रेजेंट है। और एंटी सिमेट्रिक सेज दैट ओनली वन अमंग अल्फा बीटा शुड कम, सो अल्फा बीटा 1 1 तो प्रेजेंट है। तो मतलब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो रिपीट करने वाले होते हैं वो दोनों में कॉमन होते हैं। इसी पे स्पेसिफिकली यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा था आपके नेक्स्ट 2020 में। ठीक है। हम्म, आओ, इसके बाद आपका लास्ट आता है दैट इज ट्रांजिटिव। दैट इज ट्रांजिटिव, इज ट्रांजिटिव which says that, which says what, which says that if alpha beta belongs to R and beta gamma belongs to R, then alpha comma gamma should belongs to R. Done, 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 done. Transitive is over. Transitive is completely over and the whole relation is over. So you have completed fundamentals, some basic things. Now we are going to cover relations. Oh, sorry, functions. We're going to cover functions. What? How to cover functions? See, first of all, I'll make you draw around 8 graphs, which are very important. 8 very important graphs. 8 very important graphs. See, y equal to x square, y equal to x cube, y equal to root x, y equal to cube root of x. ठीक है। एंड देन व्हाट, ये हो गया ऊपर क्या, नाउ सी y इक्वल टू 1/x square, y इक्वल टू 1/x cube. I'll write here, don't worry, I'll be writing here. Y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1 by, see what is this? This is y equal to x square. Not only x square, it is y raised to power x raised to power n. That is x square, x raised to power 4, x raised to power 6, x raised to power 8. This is x cube. What is not only x cube? X raised to power 6, x raised to power any odd numbers, right? Clear? All the odd numbers. Now see. Now see. This is what y equal to root of x. Y equal to root of x. This is what y equal to cube root of x. This is what y equal to 1 upon x square. This is what y equal to 1 upon x cube. This is what y equal to 1 by root x. This is what y equal to 1 by cube root of x. All these graphs are very important. Just note it down and remember it. All these graphs. Now see, जब भी मैं कहता हूँ, यस कार्डिनलिटी, यस, सो जब भी मैं कहता हूँ कि व्हाट, कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, मतलब ये सिर्फ वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं है। ये एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स रेज पावर 4, वाई इक्वल टू एक्स रेज पावर 8 सबका ग्राफ है। जब भी मैं कहता हूँ वाई रेज पावर एक्स क्यूब मतलब वाई रेज पावर ऑड पावर ऑफ एक्स, वाई रेज पावर क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब वाई इक्वल टू इवन रूट ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब वाई इक्वल टू ऑड रूट ऑफ एक्स। सबका ग्राफ यही होगा, सबका शेप यही होगा, थोड़ा सा अलग होगा, शेप वही होगा, शेप वही होगा। y इक्वल टू 1/x² मतलब y इक्वल टू 1/even x रेज पर इवन पावर। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, बहुत से आगे अगर आप चलोगे तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। थोड़ा मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देख लो। मॉड ऑफ x माइनस ए का ग्राफ कैसे होता है? ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये कहता है, ये ग्राफ कहता है, देखो अगर x माइनस ए है तो मैं पहले ए को ढूंढूंगा, ए मुझे यहाँ मिल गया तो मैं ए पर एक वी शेप खींच दूंगा, मैं एक वी शेप खींच दूंगा, खत्म। मैं कहता हूँ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए है, ठीक है, तो मैं माइनस ए ढूंढ के खींच दूंगा, बिल्कुल वही वी शेप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और आपको सारे ग्राफ आने चाहिए, जैसे जैसे लॉग ऑफ एक्स का कैसे होता है, लॉग ऑफ एक्स का कैसे होता है, एक ऐसे होता है व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, और एक ऐसे हो सकता है,
when base is less than 1, ठीक है, when base is greater than 1, when base is less than 1। और आपको पता होना चाहिए ई रेज पाई एक्स का ग्राफ, ठीक है, ई रेज पाई एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है, when base is greater than 1 of course, और when base is less than 1 ये ग्राफ कुछ ऐसा सा हो जाता है, ठीक है। ये क्या पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है 0,1, यहाँ पे भी 0,1 होता है, ये पॉइंट होता है 1,0 और ये भी पॉइंट होता है 1,0, ठीक है। आओ आगे चलें। ठीक है, अब आराम से चलते हैं हम लोग किस पे, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन पे। ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, बस आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, सारा ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, देखो अगर मैं कहूँ कि x के जगह पे मैं x माइनस ए पुट कर दूं तो क्या होता है, शिफ्ट राइट वर्ड्स, ग्राफ क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट ए, राइट वर्ड्स कितना ए यूनिट। अगर मैं y की जगह पे, या फिर और छोड़ो हटाओ, मैं x की जगह पे अगर x प्लस ए पुट कर दूं तो मतलब समझ रहे हो, एक्स प्लस ए को एक्स माइनस ऑफ माइनस से भी कह सकते हैं, तो आप इसको क्या कह सकते हो, लेफ्ट वर्ड्स कितना ए यूनिट। सिमिलरली अगर मैं वाई को वाई माइनस ए से रिप्लेस करूं और मैं वाई को वाई प्लस ए से रिप्लेस करूं तो वाई माइनस ए में क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड्स जाएगा, अपवर्ड्स जाएगा, और ये वाई प्लस ए में क्या आ जाएगा, ये डाउनवर्ड्स जाएगा, डाउनवर्ड्स जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं y की जगह पे माइनस वाई पुट कर दूं तो पूरा ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लो y एक्सिस के अबाउट, सब आपने किया होगा राइट, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, सॉरी सॉरी सॉरी, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। अगर y के अबाउट करो तो x एक्सिस के अबाउट करो, और अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो टेक रिफ्लेक्शन अबाउट अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट, रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लो, y एक्सिस के अबाउट लो, ठीक है। आई होप सो यू पीपल हैव डन दिस बिफोर ऑल्सो। अब आगे चलते हैं और आगे किस पे करेंगे, चलो अगर y को आप मॉड ऑफ y से चेंज कर रहे हो तो क्या करेंगे, तो रिमूव द ग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड एंड टेक रिफ्लेक्शन ऑन ऑफ द रेस्ट ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। क्या, नहीं देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं y को मॉडिफाई से रिप्लेस करूँ तो क्या होगा, रिमूव ऑल द ग्राफ बिलो बिलो एक्स एक्सिस, रिमूव ऑल द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस एंड टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ रेस्ट ग्राफ, बचा हुआ ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। पहले क्या करो, रिमूव ऑल द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस एंड देन टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ रेस्ट ग्राफ, बचा हुआ ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप करो x को, अगर आपने मॉड ऑफ एक्स रिप्लेस किया तो क्या करोगे, remove all the graph on the left hand side of the y-axis and then take the reflection of the rest graph about y-axis. What I'm saying, take first of all what you should do, remove all the graph on the left hand side of y-axis and take the reflection of rest graph about y-axis. Clear dear students? Yes sir, बिल्कुल clear है, yes sir बिल्कुल clear ये सारी चीजें। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अब से शुरू होने वाली है, दैट इज फंक्शन। हाँ एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं पूरा मॉड ऑफ वाई या फिर मॉड ऑफ एफ एक्स से अगर मैं मॉड ऑफ एफ एक्स कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैं एफ एक्स से मॉड ऑफ एफ एक्स कर दूँ तो क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट्स टेक द ऑल द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस अबव एक्स एक्सिस, मतलब जो जो भी ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है उसको रिफ्लेक्शन लेके अबव एक्स एक्सिस कर लो, जो भी ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है उनको रिफ्लेक्शन लेकर के अबव एक्स एक्सिस कर लो। ये सारी बातें क्लियर है स्टूडेंट्स, ये सब बिल्कुल क्लियर है, क्लियर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम चलते हैं, क्या करना है हमारा, हमारे एक और बहुत ही पसंदीदा टॉपिक, अब हम लोग जा रहे हैं प्रॉपर फंक्शंस करने, प्रॉपर फंक्शंस करने जा रहे हैं, प्रॉपर फंक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या बातें क्लियर है, अब मुझे आप लोग 2 मिनट का वाटर ब्रेक दे दो, I'll go, I'll drink water, and I'll come. Will be less than 1 minute. Okay, we'll be starting. Till then, whatever I have taught, just keep on revising it. Then I'll come after 1 minute, and then we'll move forward to our functions, then LCD, then we'll go to AOD, then we'll go to what? All the kinds of integration. Then we'll cover differential equation. After that, we'll cover coordinate. After that we'll cover coordinate, and we have a we are aiming to cover coordinate fully. Now, as far as algebra is concerned, algebra is like theory portion of algebra is not
as much to be revised, right? You must be like in the IIT division, I have made you solve what quadratic equation, series progression, complex number. So if you want those topics, you can go and revise from there also, right? Because in that topic I didn't cover the revision of calculus section, that's why I'm covering it here, right? So if you have any problem with the in what you say that algebra section, you can go and watch the IET one shot video. They have covered quadratic equation fully in detail along with series progression, right, dear students? So, okay, to open my mic and I started teaching. I'm really sorry. हम क्या बोल रहे थे? फंक्शन स्टार्ट किया था जस्ट मैंने अभी फंक्शंस, ठीक है? फंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक फंक्शन एफ है जो कि ए से बी को रिलेट करता है, फंक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेशन. फंक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेशन, ओके, विच रिलेट्स, बट इन फंक्शन देर आर सम सेट्स ऑफ रूल जिसकी हेल्प से हम रिलेट करते हैं. जैसे रिलेशन हम कैसे भी रिलेट कर सकते हैं? गेट क्रॉस बी में तो सब कुछ आता है, पर हम फंक्शन में कैसे भी रिलेट नहीं कर सकते हैं. अगर मुझे एक डोमेन को कोडोमेन से रिलेट करना है या फिर एक सेट ए को सेट बी से रिलेट करना है, तो मैं ऐसे नहीं कि कैसे भी कर लेंगे. हम कैसे करेंगे रिलेट? हम ऐसे करेंगे कि इस सेट का हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, हर एक रिलेट होना चाहिए, और और एंड एक बार होना चाहिए. मतलब क्या हो, ऐसे उसको राइमिंग बना लो. हर एक हो एक बार हो, हर एक हो एक बार हो. क्या मतलब है कि रिलेशन, function is a relation in which domains every element is related and that to once. मतलब हर एक एलिमेंट डोमेन का रिलेट होना चाहिए और वो भी एक बार होना चाहिए. व्हाट इज अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच डोमेन का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, एक बार रिलेट होना चाहिए. ठीक है? ये सर, ये सब बातें तो क्लियर है मुझे. आगे चल के मुझे और आगे पढ़ाइए. तो आगे मैं क्या कह सकता हूँ? आगे मैं कह सकता हूँ कि हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं थोड़ा. क्लासिफिकेशन पे चलते हैं. तो क्लासिफिकेशंस में क्या क्या आता है? क्लासिफिकेशन क्या क्या आता है? तो पहला आता है, पहला होता है इनटू स्लैश ऑन टू. ये बड़ा शानदार है, इनटू स्लैश ऑन टू. क्या होता है इनटू स्लैश ऑन टू? देखो, इनटू स्लैश ऑन टू में क्या होता क्या है? इनटू पहला होता है इनटू ऑन टू. ऑन टू को हम एक और नाम से कहते हैं जिसको हम कहते हैं सरजेक्टिव. सरजेक्टिव, ठीक है? इनटू में क्या होता है? जो मेरा रेंज होता है, रेंज क्या होता है? जिन जिन एलिमेंट को रिलेट किया जाता है इन द, जो जो एलिमेंट के पास एक इमेज आई होती है कोडोमेन में, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रेंज कहते हैं. ऑल द एलिमेंट्स who are being related or who have a pre-image in the codomain are known as what? Are known as range. तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाए, या सॉरी, रेंज अगर कोडोमेन से छोटा है, या फिर इसको और कह लो कि रेंज कोडोमेन का एक सबसेट हो, प्रॉपर. रेंज अगर कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर, ये इसका क्या मतलब होता है? इस लाइन का मतलब प्रॉपर सबसेट होता है. और अगर इसमें रेंज होता है, इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं, और एक से रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. क्या ये बताऊँ, बात समझ में आ रही है? कि इनटू में रेंज कोडोमेन से छोटा होता है, कोडोमेन के अंदर से रेंज आता है, और ऑनटू में रेंज और कोडोमेन एक ही होता है. क्या ये बात, सारी बात समझ में आई है? यस, समझ में आई है. हाँ, चलो आगे चलते हैं. आगे चल के हमारा इसके आगे दूसरा क्लासिफिकेशन क्या आता है? दूसरा आता है, अच्छे से पता कैसे करेंगे सर? देखो, कोड में तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा हमेशा. हमेशा क्वेश्चन ऐसा होगा, एफ सच दैट आर टू आर, या फिर ए टू बी, है ना? मान लो ए टू बी दिया है, तो आपको कोड में तो यहाँ पता ही है ये बी. आपको रेंज निकाल लेना है. अगर आपने रेंज निकाल लिया तो रेंज और कोड में को कंपेयर कर दो. अगर सेम है तो ठीक है, डिफरेंट है तो वो भी बता दो. ठीक है? दूसरा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इवन स्लैश ऑड फंक्शन का. इवन स्लैश ऑड फंक्शन का क्या होता है? देखो, अगर एफ ऑफ एक्स में मैं एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करूँ और वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए, या एफ ऑफ एक्स में मैं एफ ऑफ माइनस पुट करूँ और ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, ये दोनों हमें कुछ ना कुछ बताते हैं. ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा फंक्शन जो है वो ऑड है, और ये क्या बताता है? हमारा फंक्शन जो है इवन है. क्या ये दोनों बातें समझ में आती हैं? यस सर. अब एक और बात समझ लो, जो ग्राफ होता है इवन फंक्शन का, वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस. वाई एक्सिस. जो हमारा ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है, वो हमारा सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट? अबाउट एक्स एक्सिस.
ये दोनों बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राफ होता है इवन फंक्शन का, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, एंड द ग्राफ ऑफ इवन ऑड फंक्शन इज, सॉरी नॉट एक्स एक्सिस, मैं भी फ्लो में कहाँ एक्स एक्सिस लिख दिया, अबाउट ओरिजिन डियर स्टूडेंट्स, अबाउट ओरिजिन, फ्लो में निकल गया। क्या ये दोनों बातें सारी बातें क्लियर हैं? यस, ये दोनों बातें सारी बातें क्लियर हैं, ये दोनों बातें सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है। तो इवन ऑड फंक्शन का ग्राफ भी समझ में आ गया और हमें डेफिनेशन भी समझ में आ गई, ठीक है। ये सारी बातें अगर क्लियर हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि है कि अगर देखो एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ऑड, ऑड। और अगर मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो दिस इम्प्लाइज एफ एफ ऑफ एफ डैश एक्स इज इवन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एफ एक्स ऑड है तो एफ डैश एक्स इवन है, अगर एफ एक्स इवन है तो एफ डैश एक्स ऑड है, मतलब एफ एक्स और एफ डैश एक्स अगर एक इवन है तो दूसरा ऑड होगा, दूसरा इवन है तो पहला ऑड होगा। और अच्छा, एक और बात, अगर कोई इन जनरल फंक्शन है एफ एक्स, कोई इन जनरल फंक्शन है एफ एक्स, मैं इसको एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये अगर देखो एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ये इवन ऑड नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एफ एक्स इज जनरल फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, देखना अगर मैं कहूँ कि अगर कोई एक एफ एक्स एक कोई जनरल फंक्शन, कोई भी जनरल फंक्शन है, मतलब इवन ऑड के अलावा कोई भी, इवन ऑड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उसमें एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगा ना, तो दिस विल बी एन इवन फंक्शन डियर स्टूडेंट्स। एंड अगर मैं एफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगा, दिस विल बी एन ऑड फंक्शन डियर स्टूडेंट्स। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? अगर एफ एक्स कोई जनरल फंक्शन है, उसमें मैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगा, मुझे क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। और अगर मैं एफ एक्स माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स करूंगा, मैं क्या आएगा, एक ऑड फंक्शन है। क्या ये सारी बातें सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, यस सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बताओ। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, आप सबका जवाब यही होगा, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्लासिफिकेशन भी यहीं पे खत्म होती है। देख लो, चार बातें याद रखनी है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स बराबर होगी, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स से बराबर होगी, ठीक है। ऑड में माइनस एफ, माइनस ऑफ एफ माइनस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये दोनों समझ लेना, डेफिनेशन आनी चाहिए। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इवन आना चाहिए, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ऑड का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं कि एफ एक्स अगर ऑड है तो एफ डैश एक्स क्या है, और एफ एक्स अगर इवन है तो एफ डैश एक्स क्या है, ठीक है। और अगर एफ एक्स कोई जनरल फंक्शन है तो हम उसको एफ एक्स माइनस एफ माइनस पे लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है बातें आपकी, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं और अगला क्लासिफिकेशन हमारा तीसरा पढ़ते हैं, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, ये क्या होता है सर? पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? तो पीरियोडिक फंक्शन, एक फंक्शन को पीरियोडिक तब कहते हैं अगर एफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वापस से आ जाए। इस मॉड ऑफ टी की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना, लीस्ट वैल्यू, इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। जैसे कि मैं कहूँ कि साइन ऑफ 2 पाई या फिर एक्स प्लस 2 पाई, एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू कॉट साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई इज इक्वल टू वॉट, साइन ऑफ एक्स, राइट। देखो ये 2 पाई, ये 4 पाई, ये सारे क्या हैं, ये साइन एक्स के पीरियड्स हैं। क्या है, सारे साइन एक्स के क्या है, पीरियड्स हैं, है ना। तो साइन ऑफ, ये सारी बातें क्लियर हैं सबको? यस सर, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ये सब बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। एक्स प्लस 2 पाई, एक्स प्लस 4 पाई, ये भी बातें क्लियर है सर, ये भी बात क्लियर है, यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है? देखो लीस्ट वैल्यू 2 पाई है, वैसे तो एन पाई में हमेशा होगा साइन 6 पाई प्लस एक्स करूँ, 8 पाई प्लस एक्स करूँ, पर 2 पाई सबसे लीस्ट वैल्यू है। तो अगर सबसे लीस्ट वैल्यू 2 पाई है तो क्या कहेंगे, इसका पीरियड, फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई है, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई है, ठीक है। क्या ये सारी बातें सबको क्लियर है? ये सर सारी बातें सबको क्लियर है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी कहाँ खत्म होता है, अभी कई सारी बातें हैं इसमें, और देखते हैं। पहले यहाँ पे पीरियड समझ में आ गया आपको होता क्या है, अब एक और बात समझ लो। देखो, ग्राफ, अगर आपको मैक्सिमम फंक्शंस का ग्राफ मैंने याद करवाया, देखो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको आता है, साइन इनवर्स फंक्शन का आपको आता है,
इसके अलावा आपको साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब ये तो वही हो गया, ई रेज पावर एक्स लॉग एक्स, और आपको 8 ग्राफ्स आज मैंने करवाए हैं। तो अगर मैं आपको कोई फंक्शन बोलूँ तो आप उसका ग्राफ इमेजिन करना दिमाग में, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन बोलूँ उसका ग्राफ इमेजिन करना, और देखना कि कौन सी सबसे छोटी लेंथ है जो रिपीट कर रही है। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो साइन एक्स का ग्राफ देखो कुछ ऐसा सा होता है। साइन एक्स का कैसा होता है, ऐसा सा होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे मैं कहूँ सबसे छोटी लेंथ कौन सी जो रिपीट करे, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ है, इसके बाद ये फिर से रिपीट करेगी यहाँ पर, है ना। तो ये लेंथ 2 पाई होती है। तो समझ लो कि ग्राफ में जो सबसे छोटी लेंथ रिपीट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पीरियड कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब इसके रिगार्डिंग और दो चार बातें देखो, और दो चार पॉइंट, पहले तो आपने ये समझ लिया। अब एक चीज देखो, अगर मैं कहूँ कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इनका आप निकालो क्या, इनका आप मुझे निकाल के बताओ पीरियड, इनका आप मुझे पीरियड निकाल के बताओ। क्या आप बता लोगे क्या डियर स्टूडेंट्स? और एक दो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ साथ में, वरना जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको लगेगा कि क्या ही चल रहा है ना। कहाँ गया क्वेश्चंस आपके सारे? हम्म, चलो चलो ठीक है ठीक है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, चलो। हाँ अच्छा, कहाँ से, पहले पहले ये पॉइंट कंप्लीट करवा लेते हैं तो फिर करते हैं, ठीक है। जैसे कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, तो अगर इसका मैं पीरियड पूछूं, अगर मान लो इसका पीरियड है टी1, इसका लेट्स से पीरियड है टी1, इसका पीरियड है टी1, ठीक है, इसका पीरियड है टी1 और इसका पीरियड है टी2, इसका पीरियड है टी2, तो ये जो इन दोनों का सम और सब्ट्रैक्शन, इसका पीरियड होगा एलसीएम ऑफ टी1 टी2, एलसीएम ऑफ टी1 कॉमा टी2। आप अगर एलसीएम ऑफ टी1 टी2 निकाल दो तो उसका पीरियड हो जाएगा। अच्छा तो सर एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे लेते हैं, एलसीएम ऑफ ए बाई बी अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, या एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ही समझ लो, ए बाई, जो फ्रैक्शन जैसे ए बाई बी है और सी बाई डी है, तो इसका फ्रैक्शन कैसे लेंगे हम? देखो इसका फ्रैक्शन हम ऐसे लेते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्या ये बातें सबको क्लियर है? क्या ये बातें सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्या हम करते हैं, हम पहले जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम ले लेते हैं, फिर जो डिनोमिनेटर है उनका क्या ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। क्या ये सब बातें क्लियर है? यस सर क्लियर है। अच्छा सिमिलर ही काम हम एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई और डिवाइड बाई जी एक्स के लिए भी हम यही काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो तो यही सेम काम हम करते हैं। क्या करते हैं? यही सेम काम हम करते हैं। क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उनका क्या कर लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? यस सर क्लियर है। अच्छा इसके बाद जस्ट एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ फिर चलते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि, अगर एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक एफ एक्स फंक्शन है जिसका पीरियड मेरे पास टी है, राइट, तो एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू के, एफ एफ एक्स इंटू के मत करो, हाँ, के एफ एक्स कर लो, एफ एक्स बाई के कर लो, ठीक है। और आप क्या कर लो, और आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एफ एक्स प्लस के कर लो, माइनस के कर लो, और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि 1/f(x) कर लो, और है जैसे कि रूट ऑफ f(x) कर लो, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है तो इनका भी टी होगा, 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 इन सबका टी होगा डियर स्टूडेंट्स। क्या बात समझ में आती है सबको? यस सर समझ में आती है। अगर मान लो मेरे पास एक एफ एक्स है जो पीरियोडिक फंक्शन है, तो मुझे अगर मैं पूछ लूँ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड बताओ, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड बताओ, तो इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होता है टी अपॉन मॉड ऑफ ए। ये दोनों पॉइंट याद कर लो, ये और ये पॉइंट। क्या कि अगर देखो जैसे कि के एफ एक्स है तो एफ एक्स बाई के है, एफ एक्स प्लस माइनस के है, 1/f(x) है, रूट एफ एक्स है, इन सब का क्या होगा, टी होगा पीरियड। और अगर एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस भी निकालना है तो क्या होगा, टी अपॉन मॉड ऑफ ए होगा। अब अगर मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो देखो, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 0 से 2 पाई होता है, कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 0 से 2 पाई होता है, tan एक्स का पीरियड क्या होता है, 0 से पाई होता है, कॉट एक्स का पीरियड क्या होता है, 0 से पाई होता है। इनके अलावा हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियड क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हर एक के बाद वो रिपीट करते हैं, ठीक है। और बस, जिनका भी आपको पीरियड निकालना है, आप उनका एक बार ग्राफ दिमाग में इमेजिन करो और इसके बाद अपना काम कर लो, ठीक है। टी अपॉन मॉड ऑफ ए इससे करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत आराम से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का पीरियड हमें दिया हुआ है टी है, तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का देखो इसका कैसे आएगा, टी अपॉन मॉड ऑफ ए आएगा। टी ऑफ मॉड ऑफ ए या फिर मॉड हटा भी दो, क्योंकि पीरियड में आप क्या ही नेगेटिव रखो। जैसे कि मैं कहूँ कि साइन ऑफ 2x+3 क्या बताओ, तो साइन एक्स क्या होता है, 2 पाई होता है। तो 2 पाई डिवाइड बाई मॉड ऑफ एक जगह क्या है, 2 है, तो ये पाई हो जाएगा। करके देख लो, रख के देख लो, इसमें रख के देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक रख के देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है हमारा 1 1 मेनी वन। देखो 1 1 मेनी वन का क्या मतलब होता है। 1 1 मेनी वन का क्या मतलब होता है, देखना। 1 1 मेनी वन का मतलब होता है कि x के किसी एक वैल्यू के लिए y के अगर कोई एक ही वैल्यू आती है, देखो, सॉरी, x की किसी एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। देखो क्या होता है, आप ऐसे समझना, ऐसे समझना, ये एक वो बनाया, ये दो बनाया, ठीक है। ओके, देखो, जब मैं कहूँ इसमें एक एलिमेंट है ए बी सी और इसमें एक एलिमेंट है एक्स वाई जेड। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें सारे एलिमेंट्स एक से ही रिलेटेड हैं, तो एक एक रिलेटेड है, तो ये क्या है, ये हमारा 1 1 है। मतलब क्या है कि दो वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक ही वैल्यू ऑफ वाई नहीं आना चाहिए। देखो पहली बात, एक बात जान लो, अगर कोई फंक्शन है तो एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक ही वैल्यू ऑफ वाई आएगी, है ना। अगर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, क्योंकि हर एक हो एक बार हो होता है, तो अगर एक ही बार रिलेट होगा तो उसकी दो वैल्यू कैसी आएगी। पर हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दो एक्स के लिए सेम वैल्यू आ जाए। मतलब ये भी तो हो सकता था कि ए के लिए भी एक्स आए, बी के लिए भी एक्स आ जाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये है, इसको हम कहते हैं 1 1 1 1। मतलब कि एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक ही वैल्यू ऑफ वाई है, यूनिक। मतलब for every unique element in domain we should get a unique element in y as well, ठीक है। सिमिलरली मेनी वन क्या होता है, मेनी वन यही होता है कि उसमें उसमें क्या करते हैं, देखो, ए बी सी और एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसको इससे रिलेट कर दूं, इसको भी इससे रिलेट कर दूं, और इसको इससे रिलेट कर दूं, और देखो ये दो वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, ए और बी के लिए सेम ही वैल्यू ऑफ वाई दैट इज एक्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेनी वन। मतलब मेनी से वन का रिलेशन। देखो, मेनी से वन का। तो ठीक है, कैसे समझते हैं सर, देखो कैसे समझते हैं सर कि ये 1 1 है कि मेनी वन है। देखो, उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ जो पहचानने में हेल्प करेंगे आपके। पहला है इवेंट डिग्री, इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल, इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल मल्टीपल रूट्स वाले एक्सप्रेशन, मल्टीपल रूट्स के एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन के पास मल्टीपल रूट हो, इवेंट डिग्री का पॉलिनोमियल, मल्टीपल रूट, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, और इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल मल्टीपल रूट पीरियोडिक फंक्शन, और क्या, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। इन सब के पास क्या होगा, इन सब के पास क्या होगा, इन सब इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल मल्टीपल रूट्स पीरियोडिक फंक्शन फ्लक्चुएटिंग फंक्शन, ये सब क्या होंगे, मेनी वन होंगे, मेनी वन होंगे। अच्छा, तो 1 1 कौन होंगे, देखो, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग,
या फिर डिक्रीजिंग। मतलब या तो एंटायरली इंक्रीजिंग आए, या तो वो कंटिन्यूअस है और वो बढ़ता ही जा रहा है, या तो वो घटता ही जा रहा है। मतलब या तो वो बढ़ता ही जा रहा है या तो घटता ही जा रहा है। इसको पहचानने का तरीका कैसे कैसे समझ जा पाएंगे, देखो। पहले तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया करो। वन वन जाने के लिए आप हमेशा क्या करो करो, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया करो। फिर डिफरेंशिएशन करके फंक्शन की वैल्यू देखो, क्या कहीं कोई मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं है। अगर कोई मैक्सिमम मिनिमा हुआ तब तो पक्का क्या है, मिनिमम है। तब तो पक्का मिनिमम है। तो पक्का मिनिमम है तो क्या, कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता चलेगा? हाँ, एक और चीज़ है। देखो, जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले क्या करो, एफ को आप क्या करो, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो। और फिर आप एफ डैश एक्स का साइन देखो, और वहां से समझ पाओ, समझने की कोशिश करो कि एफ एक्स का एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या एक डिक्रीजिंग फंक्शन है या क्या है। अगर तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये देखने की कोशिश करो कि क्या वो कंटिन्यूस है। अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग भी है और वो कंटिन्यूस भी है, मतलब वो हमेशा वन वन होगा। अगर वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है तो वो हमेशा क्या होगा, वन वन होगा। लेकिन अगर कहीं बीच में मैक्सिमा मिनिमा आ जाए, या उसकी एफ डैश की वैल्यू जीरो आ जाए, है ना, वहाँ पे क्या हम समझ पाते हैं, वहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो मिनी वन है। क्या ये सारी बातें समझ में आती हैं? यस सर, बिल्कुल समझ में आती हैं, यस सर, बिल्कुल समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। ठीक है, ठीक है सबको, यस सर, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, बस यहीं पर विराम लगाते हैं हम अपने फंक्शंस को, इससे ज़्यादा एक देखो, एक और होता है व्हाट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वो भी समझ लो क्या होता है। जैसे कि हमारा कोई ग्राफ बना, ठीक है, जैसे कि एक ग्राफ बनाऊं, लेट्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं, ठीक है। जैसे मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं। अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन गिरा हूं, तो देखो ये इस ग्राफ को कितने बार कट कर रही हैं, एक से ज्यादा बार कट कर रही हैं। तो ये मेनी वन है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेनी वन है। कैसे पता चला सर? देखो, ऐसे पता चला कि x की इस वैल्यू के लिए और x की इस वैल्यू के लिए, दोनों के लिए सेम ही वैल्यू। जैसे ये लेट्स से टू था, माइनस टू था, और ये टू था, और ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो माइनस टू के लिए भी फोर आएगा और टू के लिए भी फोर आएगा। दोनों के लिए अगर फोर आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास एक मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। वहीं अगर मैं एक एल एन एक्स की बात कर लूँ, एल एन एक्स की, देखो तो अगर आप कैसे होता, ऐसे करके, ठीक है। इसमें आप कहीं भी वर्टिकल लाइन लाओ, एक से ज्यादा बार कट नहीं कर सकता, तो ये क्या होगा हमेशा। अरे ये एक्स क्यूब को बना दिया मैं तो, जैसे मैं ये वाला बनाऊँ, देख लो हर बार एक ही जगह कट करेगा। या फिर मैं ये वाला बनाऊँ, हमेशा एक ही बार कट करेगा। तो आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं और यहाँ तक सबको क्लियर होगा। फाइन, लेट्स मूव अहेड टू आवर टॉपिक, दैट इज लिमिट्स continuity differentiability. Hello dear students, so let's start with LCD, right? uh, yes, let's start with LCD, ठीक है। चलो LCD से शुरू करते हैं, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। एलसीडी से शुरू करते हैं। एलसीडी में क्या क्या था, देखो। देखो सबसे पहले लिमिट्स होता है। लिमिट्स क्या होता है? लिमिट्स, देखो लिमिट्स क्या होता है। जस्ट अ मिनट, हाँ यस फाइन। देखो लिमिट्स क्या होता है, देखो लिमिट्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। लिमिट्स बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, क्योंकि भाई एट सम वैल्यू we were not able to calculate we were not able to analyze graph at some values। तो हम लिमिट की हेल्प से ग्राफ को उन वैल्यूज पे आइडेंटिफाई करते हैं जिन वैल्यूज पे वो कर्व्स क्या होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। तो क्या हम क्या करते हैं लिमिट्स की हेल्प से, we in with the help of limits we try to analyze the function at the points where it is not defined, right? जैसे tan x को पाई बाई टू पे है, सारी बातें तो आपको आती हैं, ठीक है। लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं वो सब भी आपको आता ही है। हम सिर्फ थोड़े थोड़े शॉर्टकट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो,
अगर साइन एक्स है, या फिर छोड़ो एक साथ लिखवाता हूँ। जैसे हमारे पास कुछ फंक्शंस है जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, जैसे कि देखो, जैसे कुछ फंक्शंस लिखवाने जा रहा हूँ, जैसे कि देखो साइन साइन ए, tan ए, tan इनवर्स ए, cot इनवर्स ए, सॉरी cot इनवर्स ए कह रहा हूँ, साइन ए tan ए, साइन ए tan ए, साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए, और साइन ए tan ए, tan इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए, ई रेस्ट पावर ए माइनस वन, ln वन प्लस ए, और इन सारे एक्सप्रेशन को मैं सीधे सीधे रिप्लेस कर सकता हूँ उसको ए के साथ। इन सारे एक्सप्रेशन को मैं सीधे सीधे ए के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट ए शुड टेंड टुवर्ड्स जीरो। इस सब में अगर मैं लिमिट ए टेंड्स टू जीरो लगा दूं, तो मैं इन सब को ए में लिख सकता हूँ, प्रोवाइडेड ए टेंड्स टू जीरो एंड दीज एक्सप्रेशंस आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है? जैसे कि सर मैं कहूँ कि साइन ए इंटू ई रेस्ट पावर ए माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिमिट ए टेंस टू जीरो लगाऊं, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये साइन एक्स और ई रेस्ट पावर ए माइनस वन और ए स्क्वायर सब प्रोडक्ट फॉर्म में है, मतलब ये आपस के बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ना कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप साइन ए को ए लिख देना इंटू ई रेस्ट पावर ए माइनस वन को भी ए लिख देना अपॉन ए स्क्वायर, कट 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 इक्वल टू वन। क्या समझ में आया सबको? तो क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें? हम लोग कर इसमें बेसिकली ये रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस, समझ में आती है। इतनी बात समझ में आती है? यस, समझ में आती है। अब इसके अलावा क्या? अब इसके अलावा क्या? इसके अलावा और क्या बचा है? देखो, देखो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चल के क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? देखो, एलसीडी में कुछ खास है, लिमिट्स में कुछ खास है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। बस लिमिट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आपको लिमिट सॉल्व करना आता है तो आप सारा कुछ कर लोगे। ठीक है, वैसे लिमिट सॉल्यूशन के लिए वैसे पढ़ाया जाए जैसे रेगुलर क्लास में, तो करीब वी टीच अराउंड 12 to 13 मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, याद? तो 13 कवर करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको बोल बोल करके याद करवा सकता हूँ। जैसे कि याद करो आप, कौन कौन से टाइप, जैसे कि याद करो। पहला, एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली वैल्यू रख के देखो कि पहले वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन कौन से इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज फॉर जीरो, जीरो रेज फॉर जीरो, वन रेज फॉर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और एक कौन सा है? एक कौन सी छूटी? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना? यही छूटा है, या फिर इन्फिनिटी इंटू जीरो छूटा होगा, इन्फिनिटी इंटू जीरो हो सकता है छूटा हो। तो ये सारे क्या होते हैं? इन्फिनिटी इंटू जीरो छूटा था। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं हमारे इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अगर ऐसे इंडिटर्मिनेट फॉर्म आते हैं तो हम उसको सॉल्व करने के लिए हमारा मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन का हेल्प लेते हैं। कौन कौन से मेथड? टोटल 12 है मेथड्स हैं। पहला क्या है? बेसिक मैनिपुलेशन। वो क्या कहता है कि सिंपली वैल्यू रख करके देखो क्या आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो रैशनलाइज करो, रैशनलाइज नहीं और फैक्टराइज करो, रैशनलाइज, फैक्टराइज, ये सब जो 9th क्लास की चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को किस में कवर करते हैं? हम उन सब चीज़ों को कहाँ कवर करते हैं? बेसिक मैनिपुलेशन में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इफेक्टिव डिग्री डोमिनेटिंग टर्म, जो कहता है कि अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है, अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो जो x की बड़ी पावर है, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, प्लस एक्स है, तो आप इस पूरे को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? एक्स क्यूब से। सिमिलरली अगर, अच्छा सॉरी, ये इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, अगर लिमिट x टेंस टू जीरो है, जीरो है, तो मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा? इसको रिप्लेस करूंगा मैं एक्स से। कैसे पता चल रहा है सर आपको? देखो, जब भी इन्फिनिटी जाती है, एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन आती है उससे आप क्या क्या करो, उससे आप क्या करो, रिप्लेस सबको। और जब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो की तरफ जाती है, तो जो इसमें छोटी पावर होती है उससे रिप्लेस किया करो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। क्या ये सारी बात आपको समझ में आती है? यस सर, बिल्कुल समझ में आती है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। ओके, आओ आओ आगे चलते हैं। आगे चलो अगर, तो इसके आगे आपको थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में मैं समझा देता हूँ कि कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और आगे मेथड्स में बात करूँ अगर, तो तीसरा एक एक्सपेंशन भी होता है। एक्सपेंशन क्या कहता है कि आप फंक्शंस का एक्सपैंड कर सकते हो टेलर सीरीज की हेल्प से, ठीक है। कैसे, ई रेस पर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 + x + x² फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे करके ब्रेक कर सकते हो। ई रेस्ट पर माइनस एक्स में क्या हो जाएगा, बस एक्स जगह पे आप माइनस एक्स रख देना, बस एक्स जगह पे आप माइनस एक्स रख देना, सारा काम हो जाएगा। क्या ये सारी बातें समझ में आती हैं आपको? जी सर समझ में आती हैं, जी सर समझ में आती हैं, ठीक है। ये सारी बातें अगर समझ में आती हैं तो ये आप 1 - x + x² / 2 ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। माइनस से अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। और भी आपको याद होगा, चलो आपको बोल के याद करा देता हूँ, ठीक है सारा। देखिए साइन एक्स से क्या होता है, x - x³ / 3 प्लस x⁵5/5 है ना, 5 फैक्टोरियल सॉरी, x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल। अगर कॉसेक की बात करूँ तो क्या होता है, 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x⁴ 6/6 ये वाला होता है। अगर ln 1 + x की बात करूँ तो क्या होता है, x - x³ / 3 प्लस 2/15 x⁵15 ऐसे करके होता है, ठीक है। ये सारे एक्सपेंशन है जो आपको कभी याद है, तो कभी कभी काम में आ जाते हैं ये। एक आपका फेवरेट तरीका है जो सबका फेवरेट है, हमारा सबका फेवरेट, वो है एल एच रूल। एल एच रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास एल एच रूल हमें कहता है कि अगर हमारे पास लिमिट x → 0 f(x/g(x) है, f(x/g) या लिमिट एक्सटेंस टू अल्फा, कोई जनरल अल्फा f(x/g(x) है। अगर ये f(x) और ये g(x) दोनों अगर जीरो की तरफ टेंड करने लगे, या f(x/g(x) दोनों इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लगे, अगर ये दोनों 0/0 की तरफ टेंड करने लगे, या इन्फिनिटी, अगर ये दोनों 0/0 और इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लगेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x → अल्फा इनको f'(x/g'(x) पे लिख सकता हूँ। क्या मतलब है, मतलब मैं डिफरेंशिएट करके लिख सकता हूँ, कैसे मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट करके मैं अपना आंसर लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ये सब बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या आप करोगे, बिल्कुल से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एल एच रूल के अलावा अगर आप देखो तो बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन भी हैं, लेकिन अब वो इतने टाइम में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम उस पोर्शन पे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है उधर, ठीक है। जैसे कि हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे जाते हैं। देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का एक क्वेश्चन है जो हर बार आता है, एक न एक ये क्वेश्चन हर बार आता है, प्लीज इसको करके जाइएगा प्लीज। कैसा क्वेश्चन रहेगा, देखो एफ एक्स की एक डेफिनेशन दे देगा यहाँ पे, सबसे आसान क्वेश्चन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, और आपसे कंटिन्यूटी पूछेगा। पहले बात तो कंटिन्यूटी होती क्या है ये समझ लो। कंटिन्यूटी क्या कहती है कि लिमिट x → a f(x) अगर f(a) के बराबर हो जाए, अगर ये f(a) के बराबर हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं क्या, दैट कॉन्टिन्यूस है f(x), दैट f(x) कॉन्टिन्यूस है। क्या मतलब होता है, मतलब जैसे कि देखो कि मैं एक ग्राफ बनाऊँ ऐसे, ठीक है, और इस पे अगर मैं इस पॉइंट लेट्स से किस पे, ए पर अगर मैं देखूं, मैं अगर ए पर लेफ्ट साइड से जाऊं तो ये मुझे एल एच एल होता है, ठीक है। राइट साइड से जाऊं तो क्या होता है, यही आर एच एल होता है, ये एल एच एल होता है, वही आर एच एल होता है, ठीक है। अब देखना, अब देखना ये एल एच एल होता है, ये आर एच एल होता है, और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं इसको हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आती है आपको, कैसे समझ में आती है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस की क्या बात समझ में आती है, ऐसे समझ में आती है, ठीक है। क्लियर है, जल्दी बताओ। फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल टू दे दूँ, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दे दूँ आपको, अगर मैं आपको एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दे दूँ, यहाँ एक डेफिनेशन है, यहाँ एक डेफिनेशन है, कॉमा कॉमा, यहाँ कुछ दिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे लेट्स सी दिया एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, और यहाँ पे क्या दिया एक्स इज लेस देन ए। अब देखो क्या होगा,
यहाँ पे जो डेफिनेशन होंगी उसमें ए पुट करके देखना, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस, और यहाँ पे एक लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस पुट करके देखना, फिर एफ ऑफ ए पुट करके देखना, एफ ऑफ ए पुट करके देखना। ये दोनों पुट करके देखना क्या सारे सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सारे सेम आ रहे हैं, अगर सारे सेम आ रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर नहीं आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन नहीं कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्या बातें समझ में आती हैं? ये सब समझ में आती हैं। जैसे कि एक छोटा सा, सबसे छोटा सा एग्जांपल दे दो, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू, इस तरह का क्वेश्चन प्लीज कर लेना, क्योंकि आगे आपको दिखा सकता हूँ। रुक जाओ मैं बताता हूँ कब कब आया है ये, कब कब आया है ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन कब कब आया है। यस, देखो सबसे पहली बार ये क्वेश्चन आया है 2015 नेक्स्ट में। अगर आप नेक्स्ट 2015 में देखो तब ये आया है। अगर मैं 16 का पेपर उठाऊं तो 16 में ये एओडी वाला है, ये नहीं आया। ठीक है, 17 का अगर उठाऊं, देखो 15 में एक क्वेश्चन इजी रहता है। अच्छा 15 वाला करवा भी देता हूँ, रुक जाओ। देखो देखो इसमें भी आया है। देखो क्वेश्चन नंबर देख लो, करवा देता हूँ। एक 2017 में भी आया, 2015 में भी आया, इस तरह क्वेश्चन एक एक करवा देता हूँ दोनों जगह से। ठीक है, देखो देखो हमारा क्या होता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 9, और यहाँ क्या 9/2। ये सबसे आसान क्वेश्चन रहता है हर टाइप में। ये कब है, एट एक्स इक्वल टू 3, और ये कब है, एट एक्स नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 3 पे क्या है, ये है। एक्स इक्वल टू 3 पे क्या ये है। देखो मैं कहूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स में करूँगा तो क्या पुट करूँगा, ये पुट करूँगा, या फिर एक 3 माइनस छोड़ो ना, 3 पर मैंने लिमिट की वैल्यू निकाली एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगर आप पुट करो तो देखो 0/0 का फॉर्म है, तो आप ऊपर डिफरेंशिएट कर दो तो ऊपर आ जाएगा 3x और नीचे क्या आ जाएगा 2x, और फिर पुट कर दो 3 को, तो क्या हो जाएगा 3 2 3 3 9 और 2 3 6। क्या ये बातें क्लियर हैं सबको? या इसको इसको कट भी कर देते यार, 3x² था ना, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। 3x² था ना, हाँ। तो ये क्या आ जाता, 3 3 9 अपॉन 2, देखो 9/2 आया ना, देखो 9/2 यहाँ पे भी आया, 9/2 आया, मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो है। तो पहला ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर, देखो पहला ही ऑप्शन सही है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर मान लो ये मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूँ, ऑल तो पूछा नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी की बात करूँ, तो हमेशा डिफरेंशियबिलिटी की बात जब भी करते हैं तो यहाँ एफ डैश एक्स यहीं पे निकाल लो। यहीं पे एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, इस दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। पहले को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, 3x³ माइनस 3x³ डिवाइड बाई 2x, यानी कि 3x² डिवाइड बाई 2x, सॉरी, यानी 9x/2। ठीक है, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। 9/2 करो, ये कब है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3। ये कब है, व्हेन x इज इक्वल टू 3। इन दोनों को पुट करो और देख लो क्या सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो अगर क्या करना है हमको, हमको वही सेम काम करना है। एक बार क्या करना है, एक बार हमको एफ एक्स से करना है, एक बार हमें एफ डैश एक्स से करना है। अगर दोनों टाइम सेम आ रहा है मतलब कि हमारा है कॉन्टिन्यूस, वरना नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है और वैसे ही पीस पाइस में ब्रेक करना और ऐसे ही कर देना है। ठीक है, देखो 2017 में भी आया है, और ले चलूँ आपको तो 18 में ले चलता हूँ। चलो 2018 PYQ में हर साल एक क्वेश्चन इस तरह का आता है। ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ दिस। देखो 2018 में देखो 2018 में भी आया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर kgx, और फिर हमको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूछी है। हर साल एक क्वेश्चन आता है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम चलते हैं थोड़ा सा एओडी पे। एओडी पे चलते हैं, एओडी पे कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो करनी जरूरी है। जो जो चीज़ें कंटिन्यूटी के लिए बताई हैं, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके वो सारी बातें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है आप लोग, अब यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज एओडी। ठीक है, एओडी देखो कैसे यूडी करेंगे। यूडी में क्या क्या आता है, देखो टेंजेंट नॉर्मल आता है जो कि हम थोड़ी देर बाद कोनिक में पढ़ेंगे। देखो वहाँ डिफरेंशिएट किए थे एफ डैश एक्स को, इसलिए वो आया था। ठीक है, अब देखो एक बार देख लिया जाए कहाँ क्या क्या हम लोग कवर कर चुके हैं।
डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे हम इसको तो क्या आएगा, 3x² अपॉन 2x। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ हो गई थी, हाँ यही मेरे से गड़बड़ हो गई थी। ये मेरा आएगा थ्री 3x अपॉन 2 यस। तो ये हो गया हमारा क्लियर, डन। अब यूडी में क्या क्या आता है, देखो टेंजेंट नॉर्मल आता है, मैक्सिमा मिनिमा आता है, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी और थ्योरम्स आते हैं। ठीक है, थ्योरम्स आते हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल, एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स फ्रॉम दिस पोर्शन, एंड दैट पोर्शन इज मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा। कोई भी फंक्शन मोनोटोनिसिटी कैसे, पहले पहले मोनोटोनिसिटी समझ लो। अगर एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है, और एफ डैश एक्स से साइन को एनालाइज करो। हर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है हमेशा, यानी कि अगर मान लो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इसका क्या मतलब होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन जीरो, इसका क्या मतलब होता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस तरह का नेक्स्ट कभी पूछता नहीं है। अगर ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीजिंग है, लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, सिमिलरली वैसे ये इसके अलावा कोई थ्योरी है ही नहीं इसमें, पता नहीं क्यों फिर भी नहीं करते हो आप लोग। अगर आप एफ डैश एक्स निकालो और इक्वल टू जीरो करो और यहाँ से इसके रूट्स निकालने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे अल्फा बीटा आया, ठीक है, ठीक है, अब उस पर एनालाइज करो फंक्शन को, जैसे अल्फा और बीटा में अगर फंक्शन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा है, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो से ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो पॉजिटिव, और अगर लेस देन जीरो से ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमा है, ग्रेटर देन जीरो से लेस देन जीरो होता है तो मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? देखो एफ डैश एक्स मतलब स्लोप होता है, मैक्सिमम क्या होता है, पहले स्लोप बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर गिरता है। तो एफ डैश एक्स पहले ग्रेटर देन जीरो है, फिर ऊपर जाके जीरो है, फिर बाद में लेस देन जीरो है। और मिनिमम में क्या है, पहले एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, फिर मिनिमम जीरो है, और फिर क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिनिमम। एक और तरीका क्या होता है nth डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू निकाले तो अल्फा बीटा नहीं आएगा, सिर्फ अल्फा, मान लो एक अल्फा आया। ठीक है, तो अब आप क्या करो, अभी आप यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स निकालो, उसमें अल्फा की वैल्यू पुट करो, फिर एफ ट्रिपल डैश निकालो, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करो। कब तक पुट करना है ये, जब तक हमको पहली नॉन नेगेटिव वैल्यू ना मिल पाए। जैसे हमको पहली नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो हम देखेंगे, मान लो इसी भी मिल गई, तो हम देखेंगे कि क्या वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको हम कहेंगे कि वो मैक्सिमा है डियर स्टूडेंट, और अगर वो पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे उसको कि वो मिनिमा है डियर स्टूडेंट्स। क्या ये बातें क्लियर है सबको? जी सर बिल्कुल क्लियर है। क्या सारी बातें क्लियर है सबको, जल्दी बताना, क्या सारी बातें क्लियर है? इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, हर साल आते हैं, हर साल। तो 2018 का क्वेश्चन पेपर खोला तो 15 से दिखाता हूँ। ठीक है, 2015 में इस एक मोनोटोनिसिटी के ऊपर कितने क्वेश्चन आए थे, देखो मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर कितने क्वेश्चन आए थे देखना। देखो एक और क्वेश्चन आया था 2015 में भी, जो कंटिन्यूटी वाला करवाया हूं, उसमें ए बी की वैल्यू पूछा था। तो ए बी की वैल्यू निकाल लोगे ना, पहले वाले से कंडीशन लगाना, वो बता देगा। अगर वो ए बी की वैल्यू पूछेगा तो आपको बता देगा कि क्वेश्चन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो वहां से एक जगह से ए की वैल्यू निकालो, दूसरी जगह से निकालो, इक्वेट कर दो। ठीक है, देखो 2015 में पहला क्वेश्चन आया था, देखो आ गया, एक आया, ये भी मोनोटोनिसिटी का है लेकिन एग्जैक्टली वैसे नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था सिर्फ, एक क्वेश्चन था सिर्फ 2016 पीवाईक्यू में। अगर आप देखो तो कितने क्वेश्चन थे इसके पोर्शन के, आई होप आप लोग पीवाईक्यूज देख रहे होगे अपार्ट फ्रॉम क्लास ऑल्सो। कॉन्टिन्यूटी वाला तो हर बार आ रहा है यार, वो तो छोड़ के मत आना प्लीज। एक एग्जांपल करवाता हूँ, रुको। देखो जैसे एक क्वेश्चन आया था, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, देखो कैसा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है देखना। ये नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2016 का बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, देखना क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू, हमको बता दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एल एन एक्स, एक्स एल एन एक्स, और हमसे पूछा है कि कहाँ इंक्रीजिंग है, इसका मिनिमा कहाँ है, इसके जीरोस क्या क्या है। तो देखो जीरो तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि इसके जीरो कब कब आएंगे।
इसके पास 2 ज़ीरोज़ होंगे। नहीं, नहीं, इसके पास 1 ज़ीरो होंगे। पहली बात तो देखो, देखते आपको समझ आना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन का आप डोमेन निकाल लो। डोमेन मैंने सिखाया ना कि एफ(x) इंटू जी से क्या होता है, डोमेन क्या होता है, एक्स एल एन एक्स का क्या होता है, डोमेन ऑफ एल एन एक्स, क्योंकि एक्स का तो कुछ मतलब सारा ही होगा। तो यहाँ से डोमेन आप निकालोगे तो 0 से इन्फिनिटी आएगा। आई होप सो यू नो हाउ टू कैलकुलेट डोमेन। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी में इसकी वैल्यू कब 0 हो सकती है, सिर्फ एक वैल्यू पे, जब एल एन एक्स 0 हो सकता है, दैट इज 1, 1 पे। तो इसकी वैल्यू सिर्फ x इक्वल टू 1 पे 0 हो सकती है। x इक्वल टू 0 पे क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 0 इंक्लूडेड ही नहीं है। तो डोमेन में 0 से इनफाइनाइट आता है। तो कितने रूट हैं इसके, 1। तो एक ऑप्शन तो वही सही हो गया। इसके अलावा इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है पूछा है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल दो। तो क्या आएगा, एक्स इंटू 1/x प्लस एल एन एक्स अपॉन, बस अपॉन नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, 1 प्लस एल एन एक्स आया। अच्छा, 1 प्लस एल एन एक्स कुछ नहीं आता ना, तो ग्राफ ही बना दो 1 प्लस एल एन एक्स का, ऐसा ही होगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो कब है, 1 1 0 के आगे आगे, और लेस देन जीरो कब है, 1 0 से पीछे पीछे। देखो एक ऑप्शन है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, बिल्कुल इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स हैज 1 0, यस एफ एक्स हैज 1 0। और एफ एक्स क्या ये समझ में आया, देखो। अच्छा, इंक्रीजिंग क्यों है 0 से इन्फिनिटी में, समझ में आया ना। ये देखो, जीरो से लेकर के, यहाँ 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक में ये पॉजिटिव है एफ डैश एक्स। ये मैंने किसका ग्राफ बनाया है, एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाया है, ध्यान से समझना। बाकी एक टैंजेंट पूछा है 1 0, तो वो निकाल ही सकते हो आप आराम से। तो ये था नेक्स्ट 2016 का सवाल, ठीक है। क्या ये सारी बातें क्लियर है, रुको। देखो, और बता रहा हूँ, और रुको बता रहा हूँ। चलो, चलो फिर आगे चलते हैं, धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, ठीक है। With ln x into 1, 1 plus ln x, and we are done with it, right? Everything is correct, right? कहीं गलती तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। हमने क्या किया, हमें एफ एक्स दिया हुआ था, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मोनोटोनिसिटी निकालनी थी। सबसे पहले हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला, उसका ग्राफ बना लिया। उसका ग्राफ बनाया, हमको पता चला कि मैक्सिमम मिला तो कहीं है ही नहीं। एक और चीज़ पता चली कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो, कहाँ से, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये सारी बातें समझ में आती हैं आपको। और देखूं कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट कर रहे हैं। देखो एक एक भी क्वेश्चन है, देखो। आ, देखो एक क्वेश्चन और था, देख लो। देखो ग्राफ बनाने का इजी तरीका क्या है, हमको y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ पता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिखाया था, तो y-1 इक्वल टू एल एन एक्स के ग्राफ में क्या करेंगे, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करने पे भी यही ग्राफ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ग्राफ एकदम ईजी है इसका। आओ चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये है नेक्स्ट 2020 या 19 का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन है, देखो। इसके बाद एक ब्रेक लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कैलकुलस। पूरी कैलकुलस रिवाइज करेंगे, पूरी कैलकुलस रिवाइज करेंगे। इतना ही समय है कि हम पूरी कैलकुलस रिवाइज कर पाएँ। लेकिन एक बात जान लो, कैलकुलस का वेटेज इज़ अराउंड 50 to 60% इन द पेपर। कैलकुलस का सबसे ज़्यादा वेटेज होने वाला है, और कैलकुलस पे बिल्कुल फोकस करके रखना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर चैप्टर से आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये कंप्लीट कर लें एक बार। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसका वही पूछा है, कहाँ डिक्रीजिंग है कहाँ इंक्रीजिंग है, यही सब पूछा है। तो हमेशा जब भी इस तरह का पूछे तो क्या करो, एफ डैश एक्स निकाल लो। तो निकाला था, तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स इंटू एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई, देखो। इंटीग्रेशन कर रहा है ना, डिफरेंशिएशन कर रहा है ना पूरे का, देखो।
पूरे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, बोर्ड बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार। बोर्ड चेंज कर दूँ। पता नहीं क्यों हैंग कर गया, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। चलो फाइनली आ गया है, एक काम करते हैं हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि आपके पास पीडीएफ चली जाए। चलो दूसरी पीडीएफ खोल लेते हैं, तो उसमें करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 1-2 मिनट, फिर हम शुरू करते हैं हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। सही होगा, आई होप सो। अच्छा अभी आप लोगों का स्क्रीन नहीं आई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलो आ गया, आओ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स अपॉन 1 + x, यही क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले काम मैंने बताया कि हमेशा इस तरह क्वेश्चन आया जिसमें ऑप्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछे, तो सबसे पहले काम करो एफ डैश एक्स निकाल लो। अगर आपने एफ डैश एक्स निकाला तो क्या आएगा, 1 + x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेज पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स अपॉन 1 + x, सॉरी, ये क्या आया, 1 + x ई रेज पावर एक्स इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ, अब क्या करेंगे x इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन में 1 ही आएगा अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ऊपर में सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इस पूरे को ओपन करना, तो आएगा माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 + x²। अच्छा, माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स, ये दोनों कट गया, एक्स कितने टर्म में माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर ऐसा एक है, एक ही आएगा ना, एक ई रेज पावर माइनस एक्स आएगा और एक माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स ई रेज पावर एक्स माइनस आएगा, हाँ एक एक टर्म रह जाएगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ, देखो सब में से ई रेज पावर एक्स को कॉमन कर लूँ, ई रेज पावर माइनस एक्स को, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 - x² माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन एनालाइज करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन क्या होगा, पहले तो इसको चलो इसको ऐसे ही एनालाइज करते हैं, x² माइनस x² माइनस x प्लस 1, इसका d निकालो, इसका d क्या आएगा, b² माइनस 4ac प्लस 4ac, यानी 5, यानी ग्रेटर देन 0 आया, b² माइनस 4ac, अच्छा ये नेगेटिव आएगा, देखो कैसे, देखो कैसे, इसमें एक बार माइनस कॉमन कर लो,
माइनस कॉमन कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी पॉजिटिव आएगा। ऑप्शंस क्या क्या तेरे को देखने दो। अ, अच्छा, इसीलिए ऑप्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं दिया हुआ है, देखो इसीलिए दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या स्ट्रिक्टली ना ही इंक्रीज करा, क्योंकि ये जीरो से बड़ा भी होगा, जीरो से छोटा भी होगा, क्योंकि ये बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा, ठीक है। तो इसलिए कहीं गड़बड़ तो नहीं करी है। वन क्या इसका रूट है क्या? नहीं, वन इसका रूट है ही नहीं। माइनस वन है क्या? माइनस वन है ही नहीं। सही है, सही है। तो क्या इससे समझ में आया हमको कि ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसीलिए दोनों ऑप्शन जो हैं उनको टिक नहीं किया गया है, जबकि फोर्थ ही ऑप्शन कोई सही है, जो कि एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स का, ठीक है। तो दोनों ही नहीं होगा, दोनों नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहीं पर वो ग्रेटर देन जीरो है। अब ये देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उसका डी ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है कि उसको रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो रूट की किसी साइड वो ग्रेटर देन जीरो होगा, किसी साइड वो लेस देन जीरो होगा। तो एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते, ठीक है, एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे इसको समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं किया हूँ यार, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया हूँ एफ डैश एक्स का सिर्फ। क्या डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे आप लोग? डिफरेंशिएशन करो, जो डिफरेंशिएट होकर के आया उसका साइन एनालाइज करो, एनालाइज करो कि कि वो ग्रेटर देन जीरो है, कि वो लेस देन जीरो है, कि वो क्या है। पर यहाँ पर तो दोनों ही है, लेस देन जीरो भी ग्रेटर देन जीरो भी है, तो मतलब वो दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके बाद हम चलेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन देखेंगे। और हाँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जस्ट इसके बाद इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो जाए, फिर आपको बताता हूँ हर एक टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये एक मिनट रुक जाना, एक बार इसके खत्म हो जाए फिर बताते हैं, ठीक है। चलो, वेट फॉर 1 और 2 मिनट, ठीक है। मेरे गले की हालत खराब है, जस्ट 1 या 2 मिनट वेट करना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। वी आर गोइंग टू सॉल्व इंटीग्रेशन नाउ। इंटीग्रेशन, we'll do integration. See, we'll focus on definite indefinite integration more, just because if you know how to solve the integration, you'll be very easily able to put the limits, right? One very important thing is that nowadays in the next 2020 and 2021 paper, if you see the in 2020 there was in the session 2 there was a question on integration, session 1 there was no question. um, if you go through that, you'll analyze, you'll get to know that they're not asking question on the basis of property, right? In IIT, you simply with the help of property will be able to solve the question, but in NEST they are not. They want you to solve big integrations, right? So let's start solving some of the basic integrations. First of all, let us learn what is an isolate rule. What is an isolate rule? Let's revise isolate rule. Isolate rule says that if I have to perform a first function into second function integration, how can I do it? I can read first function into integration of second function minus integration of differentiation of first function into integration of second function, wholes integration, right, dear students? The first function and second function is chosen on the basis of a root that is known as isolate. Isolate. What is isolate, dear students? Isolate states that inverse trigonometric functions should be given the biggest priority. After that, logarithmic function. After that, algebraic function. After that, trigonometric function, and last the exponential function. Right. So this is our isolate rule. And let's go forward and solve not some of the question, but some of the types of question. Yes, one more important thing. All the six properties. These six properties are very important. Like if I say integration of dx upon x square plus e square, it is always equal to 1 upon a tan inverse x upon a, right? If I write dx upon x square minus a square, it is what? 1 upon 2a l sorry ln ln mod of x minus a upon x plus a, right? If I write integration dx upon a square minus x square, it will be what? 1 upon 2a ln mod of a minus x upon a plus x. Yes, 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 students. Integration dx upon root over a square minus x square. What is this? Sine inverse
x by a, right? So all these things you are aware of, right? All these things you are aware of, all these formulas. I'm just making you go through all the formulas once again. Integration of integration of dx upon what, let's say root over x square plus a square. What is its formula? Little complex. Ln mod of x plus root over x square plus a square plus c. Similarly, if I say do the integration of dx upon root over x square minus a square, it will be what? Ln mod of x plus root over x square minus a square. So these are some of the very important formulas which from integration you must remember. These formulas, are very, very important. Pause it and note it down. Pause it and note it down, right? Yes, students, these formulas are very important, right? So now, now okay, how to solve questions? I'm going to just go through each and every type of question, each and every type of question. I'm not going to solve examples on each and every type because it will be very long, right? Uh, okay, let's start. Let's start. These six are important. The rest, the left two, three formulas that are not very important. That root x square plus a square dx and x square minus a square dx. No, that are not very important, and they're also hard to remember. So I'll ask you that if you can remember, then remember. Else, what you can do, you can just derive it there. Just put x equal to a cos theta, x equal to a sin theta. There only you'll be able to derive the question. No need to remember if you're not able to remember because it's little lengthy. I don't remember it, right? Here if I say, dear students, here if I say what, see, mm, if I'm getting a integration L upon L types, what will I do? I'll try L dash upon L types. I'll try to make this L dash in the form of L, and then I'll solve. How? See, if let's say I'm getting integration of 2x plus 3 upon 9x plus 4, I'll try to make 2x plus 3 from 9x plus 4. How? I'll just write 9x plus 4. Now how can I make 2x plus 3 from 9x plus 4? I can multiply here 2 by 9. So here we'll get what? 2 by 9 into 4 extra. That is 8 by 9. We'll subtract it. We want extra 3. We added 3. 9x plus 4. Now split it there. You'll get what? 2 by 9 dx minus plus 27 plus 19 by 9. 27 minus 8 is what? 19 by 9. Integration of 1 upon 9x plus 4 dx. Very important now. Very easy now. Yes, easily solvable now. If I get questions like linear upon quadratic, always remember that what you have to do in this question is that you have to find the L dash for this Q. That is the differentiation. See what happens is here. See, if I write L upon Q, so this Q is what? This Q is our L dash. Just try to find L dash first. What is L dash? L dash is the differentiation of quadratic equation. L dash is the differentiation of quadratic equation. If I differentiate it, I get L. L dash. So what I'm going to do here, I'll try to make L dash from this L. So I'll try to make L dash from this L, and I'll solve it. How can you make L dash from L? With the help of this process. Whatever L dash should be given, I'll write L dash here upon Q, and after that I'll do manipulations in this L dash to make it L. See, we have to make L dash from L. So indeed what we have to do, we have to first of all write L dash, and then we have to make L from that L dash, right? The way I have done here, I wanted L in the numerator, so I wrote L in the numerator, and then what I did, I just manipulated it to get the L dash. Is it clear? Yes. Great. Great, great. After that, if I say next kind of questions, see, these questions are very important, and I'm listing them down. Question of the form 1 upon L1 L root Q. Questions of the form 1 upon L1 root L2. Questions of the form 1 upon Q1 root Q2. Questions of the form 1 upon Q root L. In all kind of these kinds of question, in this kind of question, what you have to do, you have to put uh, x L as 1 by t, right? You have to put L as 1 by t. Here what you can do, here you can put L2 equal to t square. Is it clear? You can put L2 equal to t square. Here what you can put, here you can put L as 1 by t.
And here also what you can put, see 1 upon q root L, you can put root of L, or you can say that L equal to. These are the substitution that you are going to perform whenever you get questions like these. What are the questions like this? If you are getting question like 1 upon L root q, that is 1 upon linear root quadratic, 1 upon linear root linear, 1 upon quadratic root quadratic, or 1 upon quadratic root linear. For the first, you should substitute L as 1 by t. For the second, you should substitute L2 as t square. For the third, you should substitute x as 1 by t. And for the fourth, you can substitute root L by t square. Is that everything clear? Yes, sir. Everything is clear till now. Yes. Yes. Okay. Fine. Fine. Yes. Now let's move forward. Let's move forward. Let's move forward and do different kind of integration once again. Just say if I get integration like 1 upon a sine x plus b cos x plus c. What you can substitute here? You can substitute x as what? Okay, a sine x plus b cos x. Is this the question? Yes, a sine x plus b cos x. Okay, you solve this. You can simply convert all the sine x term in the form of tan square x by 2. How? We know the formula that sine x equal to what? 2 tan x by 2 upon 1 plus tan upon 1 minus tan square x by 2. 1 plus, sorry, 1 plus. Yes. And also we know that cos x by 2 can be written as what? 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Right, these two are the formulas which we are going to apply here in order to get the answer. Right, we'll try to convert this sine x and cos x in the form of tan. How? With the help of these formulas, and hence we'll be able to solve the question. Right, moving forward, if you see, yes, one more important thing. If let's say you get questions like this, see, all the kinds of question can't be covered here. I hope so you understand this. See, whenever there's a question like this, where sine mx into cos nx is there, you know that we have to substitute either sine x as t or cos x as t. But how can you know that you have to substitute sine x t as t or you have to substitute cos x as t? For that, what I'm telling you, for that, what I'm telling you is that, see, cos x, yes, fine. So for that, what I'm telling you, the one which is having a odd power, substitute the other as t. मतलब जिसके पास भी odd power है, उसके सामने वाले को t सपोज कर दो. क्या मतलब है इसका? मतलब कि देखो, let me give you an example. जिसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो, sin cube x cos 8x dx. Fine. We have to find the solution for this. Now see, which one is having an odd power? This. Sine is having an odd power. Substitute cos x as t. Substitute cos x as t, you'll get your answer. So the one expression in sin x into cos x. So the one question, see, so m or n में से whatever is odd will substitute the other one as t. Whatever is odd will substitute the other one as t. Fine. अगर n odd है तो m को substitute, अगर n odd है, जिस टर्म पर ऑड पावर है उसके अगली टर्म, जैसे साइन के ऊपर ऑड पावर है तो कॉस को टी सपोज करेंगे, अगर कॉस के ऊपर ऑड पावर है तो साइन को टी सपोज करेंगे. ठीक है, फाइन. फाइन. सी, इंटीग्रेशन में और ये सब कुछ स्टैंडर्ड इंडिकेशन जो मैं डिस्कस कर रहा था, इसके अलावा आप देख लो इंटीग्रेशन. ठीक है, जहाँ से भी देखो, अब लास्ट मोमेंट पे अब मैं और नए टाइप के इंटीग्रेशन आपको कितना भी करवाऊँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, गो थ्रू ऑल द काइंड ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव गॉन थ्रू ये टिल नाउ. ठीक है, जितने टाइप के इंटीग्रेशन आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे, वो इंटीग्रेशन के थ्रू गो थ्रू कर लो. क्योंकि देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते नहीं है. टू बी वेरी फ्रैंक, आती नहीं है. डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें पक्का एक जो इंटीग्रेशन होगा वो काफ़ी खतरनाक सा होगा, और उससे पूछेगा. वही बात समझ में है? तो देखो, अब हम क्या करते हैं ना, अब
थ्योरी थ्योरेटिकल पोर्शन में यहीं रोकते हैं, क्योंकि इस तरह से हमने पूरा कैलकुलस राउंड कवर कर ही लिया है, ठीक है। डेफिनेट नेगेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ थ्योरी नहीं आती, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। और ये तो सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। तो अब हम यहीं पर रोकते हैं कैलकुलस को अपने। अगर आपको मैं दिखाऊं, रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। 2022 का पेपर देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 2022 पे स्टार्ट करता हूँ। 2022 पे देखो क्या आपकी सिंपल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। देखो देखो आ, 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 उम, देखो एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन पर आया है 2022 में, दैट इज, रुको अब करवा देता हूँ उसको। देखो, अच्छा इस बारे में नहीं आया है शायद। देखो, अराउंड 17 क्वेश्चंस इन मैथ्स, जस्ट गो थ्रू, आप लोग मेरे साथ साथ जाते रहो। साइसरा के ऐप पे होगा, आपको भी पीवाईक्यू शायद मिले होंगे, तो जा करके देखो जो नेक्स्ट 2022 का पेपर है। Not even a single question, not even a single question on definite negation has came. डेफिनेट negation के ऊपर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आया है, देख लो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डेफिनेट negation की प्रॉपर्टीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट नाउ। हाँ, आईआईटी के लिए थी, बिल्कुल थी। अब तो देखो 2020 का, 2021 का मैं सेशन 2 देखता हूँ। देखो 2022 का मैं सेशन 2 देखता हूँ, रुक जाओ। देखो इसमें भी आप देख लो, परफेक्ट स्क्वायर ना, हाँ देखो एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है, एंड एक क्वेश्चन द सेट ऑफ रियल नंबर विच इज एन इनइक्वालिटी। इसमें भी प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं है, इसमें भी प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन आया आप देख सकते हो जिसमें भी प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन जिसको सॉल्व करना था, जिसको कोई भी सॉल्व कर लेता। एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है और उसको सॉल्व करके इनइक्वालिटी लगाई, जिसमें प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर और देख लो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या था देख लो। जो एक 2020 में, एक 2021 में एक क्वेश्चन आया, दिखाई देता हूँ मैं लिख करके। देखो 1/√a इंटीग्रेशन 1 से a 3/√x प्लस 1 माइनस 1/√x। इन सब के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, d(x), ये लेस देन 4 है। अब बताओ इसमें क्या ही प्रॉपर्टी का यूज है भाई, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, सॉल्व कर लो। क्या इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करो, आंसर पाओ। आसान सा क्वेश्चन है ये, विदाउट प्रॉपर्टी यूज का। और देखो बस यही एक क्वेश्चन था, बस पूरे पेपर में ये क्वेश्चन था डेफिनेट इंटीग्रेशन का। और आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट वाइज बता दे रहा हूँ, अभी वही जा रहा हूँ करने। देखो 2020 का देखा जाए अगर सेशन 2, 2020 के सेशन 2 में देख लो। जो बात मैं कह रहा हूँ वैसे नहीं कह रहा हूँ, अ, मैंने इस पेपर से एनालाइज किए हैं ना। देखो क्या समझ में आया, देखो आओ अब हम लोग थोड़ा सा पेपर वाइज क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, थोड़ा उस पर फोकस कर लेते हैं। अब आपका जो बचा टाइम है, ठीक है, अब हम उस पर फोकस करते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैंने अलजेब्रा वहाँ पे रिवाइज करवा दी थी, आप आओ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट पहले समझ लेते हैं कि किस चीज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ ये देखो, अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, सबसे पहले कैलकुलस की, कैलकुलस की बात करूं, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। जस्ट अ मिनट, मेरा फोन डिस्चार्ज। चलो चलो, कैलकुलस से क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले वो समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूँ आपको भी, मैं पेपर को दिखा दिखा के स्ट्रैटेजी बताऊंगा, डोंट वरी। पेपर्स मैं अभी शो करूंगा आपको, फिर स्ट्रैटेजी बताऊंगा।
तो 654 नेक्स्ट के लिए रूल नहीं, नहीं नेक्स्ट के लिए अलग रूल रहेगा, 4654 नहीं होगा। नेक्स्ट के लिए बिल्कुल ही अलग रहेगा। अब बताते हैं ना, आराम से सुनो, चलो रिलैक्स, पहले तो सुनो। पहले चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो समझ लो, और कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या आ रहा है वो समझ लो। तो कैलकुलस में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है ना, एक है जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन वाला पार्ट है। देखो आपको सारे फंक्शन का ग्राफ बनाने आता है। कई बार ऐसा होता है कि एक एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स जैसा कर्व दे देगा। कैसा? एक एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स जैसा दे देगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स जैसा देगा। हाँ, एफ इक्वल टू जी एक्स देगा। अब वो आपसे कहेगा क्या कि इसके सॉल्यूशंस बताओ। वो ग्राफिकली सॉल्व हो जाते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि एफ ओ एम में इस तरह की चीजें आती हैं। अच्छा, फंक्शंस में फंक्शंस में फंक्शन में क्या क्या आता है देखो। फंक्शन में सबसे पहले तो देखो एज सच फंक्शन बेस्ड कोई नहीं आता, पर हाँ आपसे सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव ये सारी चीजें बहुत पूछता है। मतलब कल के पेपर में मेरा मतलब नेक्स्ट 2023 के पेपर में मेरा प्रोजेक्ट मेरा जो एक एजम्पशन या फिर कह लो मेरा प्रिडिक्शन कह लो है कि एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपको एक फंक्शन दिया होगा और चार ऑप्शन होंगे कि इट इज सर्जेक्टिव, इट इज इंजेक्टिव, इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इट इज ऐसे करके चार ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस तरह का फिक्स आ सकता है, फिक्स आ सकता है सारी। इसलिए मैंने सारा आपको ये ऊपर रिवाइज करवा दिया क्लासिफिकेशन, एक बार ध्यान में रखना आपने। अब आते हैं एलसीडी पे। एलसीडी से अगेन वही चीज़ है जो बार बार कह रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन एक ज़रूर से कर लेना जिसमें एफ एक्स की दो डेफिनेशन दी होंगी। एफ एक्स की जो डेफिनेशन दी होंगी, एफ एक्स की दो डेफिनेशन ऐसे दी होंगी, या फिर हो सकता है एफ एक्स इक्वल टू समथिंग दिया हो और उससे कंटिन्यूटी या डेफिनेशन पूछ रहा हो किसी एक पॉइंट पर। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आता है एओडी। एओडी में देखना हो सकता है ना क्या करेगा कि आपको वही जो मोनोटोनिसिटी है, ये मेरा एक बात बता दे रहा हूँ, ये चीज़ अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और उस दिन मैं आपको बोलूंगा कि मैंने बताया था। इनमें से या तो वन ये या तो ये टू ये, इससे एक क्वेश्चन कल आपके मल्टीपल चॉइस में आएगा फिक्स। इवन और इस इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने ही वाला है, पक्का पक्का आने वाला है। किस में से? फंक्शंस के सर्जेक्टिव इंजेक्टिव इस प्रॉपर्टी में से, और दूसरा मोनोटोनिसिटी से। इन दोनों से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब इसके बाद आप चलो इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में आपको आपको इंटीग्रेशन में आपको कभी भी प्योर इंटीग्रेशन क्वेश्चन नहीं देगा। हमेशा मिक्सचर रहेगा, हमेशा मिक्सचर रहेगा। या तो उसकी रेंज पूछने को बोलेगा, या तो एरिया बोलेगा, पर कभी भी प्योरली इंटीग्रेशन क्वेश्चन कम चांस देगा। कम चांस के वो प्योरली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देगा। दो चार प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, लेबनीज रूल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेबनीज रूल पता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? लिख देता हूँ फॉर्मूला, इसके ऊपर जरूर से क्वेश्चन आ सकता है। इंटीग्रेशन ए से बी, अगर एफ एक्स डी एक्स करना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा? मैं कहूँगा बी इंटू एफ डैश बी, सॉरी जो यहाँ है इसका पहले तो इसका इंटीग्रेशन करो, तो बी डैश और उसके बाद एफ ऑफ बी माइनस ए डैश इंटू एफ ऑफ ए। ये लेबनीज रूल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट्स। यस, स्टार्टिंग में करवाए थे। तो अब ये सारी चीज़ तो हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या है देखो, इसके अलावा क्या है देखो, आओ आओ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा एक क्वेश्चन हार्डली अगर आएगा तो डिफरेंशियल डिफरेंशियल क्वेश्चन को टच नहीं करता है, क्योंकि आपके में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन जिससे एज सच बहुत अच्छे क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं, डिफरेंशियल क्वेश्चन को कम टच करता है। ठीक है, तो एक यहाँ तक इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोग समझ लीजिए, कैलकुलस की बात रही। ठीक है, कैलकुलस खत्म पढ़ाया और मैंने बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कैलकुलस सबको क्लियर है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है? यस सर, क्लियर है। यहाँ तक सबको सारी बातें समझ में आई कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस से मैं बता रहा हूँ 17 में से 7 सवाल कैलकुलस से रहेंगे। 17 में से मिनिमम भी 7 सवाल कैलकुलस से रहेंगे, मिनिमम 7 क्वेश्चन। मैक्सिमम ये 8 से 9, 9 से 10 पे चले जाते हैं। जिससे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो 2020 सेशन में कितने क्वेश्चन थे कैलकुलस के, और दिखाता हूँ मैं। 2020 में
1 2 3 4 4 5 6 7। सबसे मिनिमम से भी मिनिमम में 7 आए हैं, सबसे कम 2020 में। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का मैं क्या कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन इसलिए प्रेडिक्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि, क्योंकि एग्जैक्ट इंटीग्रेशन क्वेश्चन आया ही कहाँ है, अगर आप देखो तो 2022 में भी कहाँ एग्जैक्टली इंटीग्रेशन से कहाँ आया है। तो इसलिए क्या कह रहा हूँ कि 7 क्वेश्चन तो गिरते पड़ते भी कैलकुलस से आना ही आना है। इन 7 में से आपको 4 या 5 बना लेना है, ठीक है, 4 या 5, क्योंकि कैलकुलस विल बी डूएबल। कैलकुलस विल ऑलवेज भी, देखो 2022 की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8, 7 से 8 क्वेश्चन फिर से है। मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आप मान के चलो कि कैलकुलस से आपका आना ही आना है। 7 से 8 क्वेश्चन आपका कैलकुलस से आना है। हाँ देखो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं और बहुत आसान है, कर सकते हो आप। पहला चैप्टर क्या है, पहला इजी चैप्टर क्या है जो आपको जरूर से रिवाइज करके आना चाहिए, वो है आपका वेक्टर 3D। वेक्टर 3D, वेक्टर थ्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर से क्वेश्चन आते हैं डुएबल होते हैं, इजी होते हैं। तो वेक्टर थ्री तो एकदम ही फोकस करके जाएगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ज्योमेट्री क्वेश्चन। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस के क्वेश्चन आए, जो कि आते हैं कभी कभी, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ये समझ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिएगा। अब कुछ चैप्टर जिससे फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, और फिक्स्ड मतलब कि आते ही आते हैं मिडल में, वो है पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वालिटी इक्वेशन मैंने आईआईटी वाले में अच्छे से रिवाइज करवाया, कॉमन रूट वगैरह सब कुछ आईआईटी के आपके मॉक फाइनल शॉट में, वो देख लीजिएगा। क्वालिटी इक्वेशन बाद एक आता है आपका प्रोबेबिलिटी। देखो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का अलग अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का टोटली अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, वो ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें दोनों का यूज हो रहा होगा। वो एक से दो, दो से दो तो आ सकते हैं, दो आ सकते हैं। बाइनोमियल पे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बाइनोमियल पे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आने वाला है। प्रोबेबिलिटी पे आ सकता है, प्रोबेबिलिटी आ सकता है, नहीं प्रोबेबिलिटी पर आएगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी पर आएगा तो सर क्या ध्यान देना है हमको, हमको क्या देना है, क्या ध्यान देना है, देखो प्रोबेबिलिटी पर अगर आएगा तो हमें किस चीज़ का ध्यान देना है। एक सेकंड का, हम्म, देखो क्या कराना है, देखो अगर प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आया तो दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है। पहला है बेस थ्योरम या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे क्वेश्चन आएगा। अगर बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा, आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपको ट्री मेथड पता है, ठीक है, ट्री मेथड करके आप कर सकते हो। अगर नहीं तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला भी पता है। देखो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की खासियत क्या है कि इसके क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आ जाते हैं कि इसमें ये चीज लगने वाला है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको पढ़ के समझ में आ गया इसमें लगने वाला, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो पहला क्या, बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आसान है। दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपके कार्ड सिस्टम वाले, कार्ड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन टॉस वाले बन सकते हैं, कॉइन वाले, बाइज कॉइन वाले, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कम चांस है, फ्रैंकली स्पीकिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कम चांस है, बट हाँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और बात करूँ तो, ठीक है, इसके अलावा देखो सीरीज प्रोग्रेशन एपीजीपी से तो आना ही आना है एक क्वेश्चन फिर से। सीरीज प्रोग्रेशन एपीजीपी से आना ही आना है। इनके अलावा 2 से 3 सवाल जो होते हैं ना, बड़े अटपटे से होते हैं। अटपटे से होते हैं मतलब क्या है, किसी में डिवाइजेस पूछेगा, किसी में ईयर दे देगा, ईयर वाला बताओ। तो देखो 2 से 3 क्वेश्चन एप्टीट्यूड बेस्ड ऐसे आ रहे हैं, सिर्फ प्योर एप्टीट्यूड वाले आते हैं, जिनमें आपको हिट एंड ट्रायल रख करके देखना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ, अगर आप रुको तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि अच्छा अभी एक क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, एक एक कोई क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा अभी, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक कोई क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तो उसके हिसाब से सबको डिस्कस करूंगा, ठीक। चलो, ओके, चलो
अब आगे क्या आता है? अब आगे क्या आता है? तो ये दो तीन तरह के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं, आपको नंबर दे जाते हैं। बस इसमें क्या है, ज़्यादा मैथ्स का लॉजिक नहीं लगाना है, ज़्यादा मैथ्स का लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, इसमें कौन सा ये यूज़ होगा, तो इतना ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, मैथ्स का फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है इस वाले क्वेश्चन में, सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल मार के देखना है हमें। एप्टीट्यूड हमारा टेस्ट करने के लिए है वो, और हम ऐसे एप्टीट्यूड वाइज चीज़ें पढ़ के तो जाते नहीं है, है ना? तो वहाँ पे हमारा, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, अगर मैं जब, अच्छा अब आते हैं कोनिक पे। कोनिक पर क्या इंपॉर्टेंट है? कोनिक में भाई सबसे ज़्यादा अगर कोई देखो, हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, एम एंड डी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से दिमाग में रख के जाना, अच्छे से दिमाग में रख के जाना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार, ये अगेन 2 स्टार, ये भी 2 स्टार, और ये 1 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन रहेगा ही, प्रॉपर्टी बेस्ड रहेगा। अभी एक क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे फिर बताते हैं, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी सीरीज में, ठीक है। अब कोनिक में अगर मैं बात करूं, कोनिक में एलिप्स और हाइपरबोला का हमेशा से दबदबा रहा है, ठीक है, ये 3 स्टार वाले होते हैं। अगर इसकी बात करूं तो पैराबोला 2 स्टार का होता है, और सर्कल स्ट्रेट लाइन 1 का होता है। कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, सर्कल स्ट्रेट लाइन 1 स्टार होता है। पर सबसे आसान क्या होता है? सर्कल ही होता है। हाँ, एप्टीट्यूड वाले में ऑप्शन चेक करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। प्रोबेबिलिटी और, हाँ, सर्कल का क्या है, हाँ, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल स्ट्रेट लाइन काफ़ी इजी है, कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी और, हाँ, क्या बचा है यहाँ पे? पैराबोला जो है, पैराबोला काफ़ी इजी आएगा, अगर आएगा तो। आपको एलिप्स बोलेगा, और आपको पता है 2 कर्व का मिक्सचर देगा। मैक्सिमम चांस क्या है कि एलिप्स और पैराबोला का मिक्सचर देगा मैक्सिमम। देखो, हाइपरबोला की ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत टफ बन सकते हैं, हाइपरबोला की ज्योमेट्री से बहुत टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनाना है अगर किसी को, तो एलिप्स और पैराबोला की ज्योमेट्री को मिला सकता है। तो कल की जो आपके एग्जाम होने वाला है, उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको एक पैराबोला दे दे और एक एलिप्स दे दे, और उन्हीं के साथ आपको घुमा करके एक खेल पूछे। तो बहुत आसान होगा, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना बस इनकी, ठीक है? तो यहाँ हमारी ये सारी बातें हो गई, ठीक है, यहाँ से जितनी बातें हो सकती थी, ये सारी बातें हो गई। अब आपको मैं एक थोड़ा सा पेपर दिखाता हूँ, एक थोड़ा सा पेपर दिखाता हूँ, और उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। एक पेपर दिखाता हूँ आपको मैं। चलो, और नेक्स्ट 2019 का पेपर देखते हैं। नेक्स्ट 2019 का पेपर देखते हैं। नेक्स्ट 2019 का थोड़ा सा पेपर एक बार गो थ्रू करते हैं। सॉल्व्ड है, एक बार तो गो थ्रू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? देखो, एक एक क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा, देखो मैं पढ़ाया हूँ पर एक चीज लिखा हूँ। हाँ, देखो, जब मैं कैलकुलस बता रहा था आपको ना, मैं व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट कैलकुलस, तो यहाँ पर फंक्शन के साथ साथ एक चैप्टर और आता है, रिलेशन ना। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इससे एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन रिलेशन से, एक क्वेश्चन फंक्शन के, इससे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे सॉल्यूशन वाला हर बार आ रहा है, इससे एक क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे 4, और एक 5 क्वेश्चन। जो 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से 5 तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिए यहीं पर। अब देखो इन 5 में से कितने आते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने, देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रिलेशन एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, एक रिलेशन याद रखना। एक क्वेश्चन रिलेशन से आएगा, एक क्वेश्चन सॉल्यूशन पूछने के लिए आएगा, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से इंजेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए, एक क्वेश्चन आएगा मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम मिनिमम वाला, एक आपका कॉन्ट्रेडिक्टिव पूछने के लिए। ये 5 क्वेश्चन तो 7 में से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इसमें से आएगा, ठीक है? अब लेट्स सी वो कितने लेवल का आता है, कैसे लेवल का आता है, ठीक है? और थोड़ा पेपर देखते हैं। देखो, जो रिलेशन के क्वेश्चन की बात कर रहा था, वो यहाँ पर देखो, जो आपको मैंने पढ़ा भी रहा था मैं थोड़ी देर पहले आपको, रुक जाओ, जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के रिलेशन का क्या पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है, ठीक है? अब आओ आगे चलते हैं। देखो, एक ही क्वेश्चन आ गया, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव। देखो, एक बोला था रिलेशन से एक आएगा, प्लस एक बोला था फंक्शन, देखो एक ही आ गया, कर लो के बहुत आराम से। आगे चलो, एक क्वेश्चन देखो इस तरह का, एप्टीट्यूड वाला बोला था, एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन क्या आता है, एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन या फिर ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप वहां बैठ करके कुछ नहीं कर सकते, वहां आपको ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी अपने से, ठीक है? ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, ठीक है? किया होगा शायद आप लोगों ने।
इस तरह का ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन जिसमें इसको इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये किसके अराउंड हमको इस एक के अराउंड क्या करना था, A1 A2 A2 A4 एक्सटेंडेड टू मीट एट पॉइंट P आउटसाइड द एंगल 2 π/3। समझ में आ रहा है? इसमें हमको पूरा फिगर बनाना था, एक तो फिगर बनाना था, ऊपर से इसमें हमको प्रॉपर्टीज का यूज करना था। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई थी, देखो दो तीन प्रॉपर्टी यूज हुई थी। पहले कि आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का ये प्रॉपर्टी होता है, ये फॉर्मूला होता है फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, या क्वाड्रिलेटरल नहीं, फॉर एनी पॉलीगन। ठीक है, अब इसी के हेल्प से हमको डिराइव करना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। फिर हम पी के अराउंड का सम जो होगा वो 360 होगा, उसको सपोज कर लेंगे। फिर ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, याद होगा आपको। देखो ये एक जो क्वेश्चन बोला था, ये उसी तरह के कुछ कुछ क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा हार्डर साइड पर है, हार्डर साइड पर। मैं वही बोला कि क्वेश्चन तो मैं प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन तो मैं प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन ये है बात कि क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो मैं कर दूंगा, पर कित कौन से लेवल का क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से वो डिफर करता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये किस लेवल का है, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कैसे करना है इसको, इसमें देखो ये एक प्रॉपर्टी दी है, एक ये प्रॉपर्टी दी हुई है। हमको इस प्रॉपर्टी में एफ इनवर्स एन इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स 1/i-1, हमको इस प्रॉपर्टी में इसको पुट करना है एफ ऑफ एन को। और एफ ऑफ आई माइनस एन है ना, ये एफ एन के बराबर है, तो इसको यहाँ पुट करके और इसकी वैल्यू हम वापस से एफ एन करके निकाल सकते हैं। इस तरह से हम जाएंगे आगे, और हर वैल्यू पर ऐसे लास्ट में आएगा एफ ऑफ कई सारे, और फिर वो कट कट के एन एन बनता जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन देखो है तो वही हमारे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, पर है थोड़ा सा टफर साइड पे। देखो ये इजियर साइड पे एक क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन था, यहाँ कुछ नहीं करना है, जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई पुट कर दो, जेड बार की जगह पे एक्स माइनस आई वाई पुट कर दो। ठीक है, जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई, जेड बार की जगह एक्स माइनस आई वाई, एक इसमें पुट करो, एक इसमें पुट करो। एक्स वाई को अलग अलग कर लेना, एक से m1 निकालना, एक से m2 निकालना, m1 m2 को -1 कर देना। एक आसान क्वेश्चन है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से। और आगे चलो, देखो ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से आया था। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका जीरो सॉल्यूशन है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो होगी, तो इसका मतलब ए तो जीरो नहीं होगा, पर मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए इंटू ए होती है ना, तो ये की वैल्यू पक्का जीरो होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी बताता हूँ वो स्ट्रैटेजी क्या होगी पेपर अटेम्प्टिंग की। अभी देखो ये प्योर प्योर हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन था, जिसको हमको कैसे करना था, हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, जिसको हमको एप्टीट्यूड की हेल्प से करना है। प्योर ये हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है, श्योरली श्योर शॉट। कैसे है, देखो हमको इसमें हिट एंड ट्रायल करके ए और बी को गेस करना है, क्योंकि ए बी अगर प्राइम है तो बी ए को प्राइम है। तो इसको कैसे कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप निकाल लोगे, कहाँ से करोगे, देखो बहुत कम ही ऐसे आएंगे। ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल से करते जाओगे तो आता जाएगा। जैसे कि मान लो 13 है, 31 है, और कौन कौन से है बताओ, और कौन कौन से है बताओ, प्राइम अपने आप सोचते जाओ। 17 है तो 71 है ना, और और आगे चलते जाओ, एक 11 है, और आगे चलते जाओ, और और आगे बताओ, 1 2 3 4 5, और और कौन से मिलेंगे, एक 37 मिलेगा, एक 37 73 मिलेगा, 37 73। देखो ये हिट एंड ट्रायल के अलावा अब आप क्या जाओगे, इसमें जितना लॉजिक लगाओगे उतना फंसते जाओगे। इससे हिट एंड ट्रायल से करो। देखो अब कितने आ गए, टोटल 7 आ गए, और सोचो 39 90, हाँ देखो 39 है, नहीं 39 तो है, सॉरी सॉरी 39 नहीं होगा, ट्रेन के अलावा और क्या हो सकता है, 41 नहीं, 47 नहीं, एक हमारा 31 और 13 है ना, हो गया 31 13। और क्या है, एक और पेयर है, कोई छूट रहा है बताओ कौन सा। हाँ 79 और 97, 79 देखो 97 देखो, हाँ 79 और 97 यही है, यस 79 और 97 यस। तो देख लो इतने आराम से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आंसर है हमारा। तो हिट एंड ट्रायल से ही कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगेन एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, एफ डैश एक्स इज लेस देन स्क्वायर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एफ डैश एक्स, क्या करना है इसमें, आप आप एफ डैश जीरो, ये आपको भाई कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का जो सवाल बोल रहा हूँ ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का एक सवाल पक्का आएगा, ये वही वाला क्वेश्चन है। इसमें एफ डैश जीरो मतलब क्या, एफ एफ की डिफरेंशियबिलिटी जीरो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप कर सकते हो अपने से, कैसे कर सकते हो भाई, जीरो पुट करके देख लो इंडिटरमिनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनडिफाइंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दो ना टफर साइड, इसके हेल्प बिना ग्राफ के हेल्प से नहीं कर सकते इसको।
तो अभी अभी मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बताता हूँ। इसका मैं सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा, बस मैं आपको पेपर अभी दिखा रहा हूँ कि आता कैसे है, ठीक है? क्योंकि यही इसी शॉर्ट का पेपर बार बार रिपीट हो। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो एक्स टेंड्स टू एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स है, तो देखो आराम से क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि अगर एफ एक्स की कंटिन्यूटी ऐसे चेक कर रहे हो तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ डैश एक्स या इन दोनों को डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसी लॉजिक पे बेस्ड था। आगे चलो, देखो एफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, फिर से वही अब बात आ गई। देखो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये, अब अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ डैश, अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करके देख लो। कई बार नेक्स्ट के क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शंस पे वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो, या हिट एंड ट्रायल से देख सकते हो, ऑप्शन पुट करके देख सकते हो। अब यहाँ क्या है, यहाँ ऑप्शन पुट करके देखना सबसे अच्छा काम है, या क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को ऑप्शन में रख करके देखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आसानी से हो जाएगा अगर आपने मल्टीपल। अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट समझ लो, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 12 से 17 तक 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, इन 5 में जो पहला वाला होगा वो हमेशा ईज़ी होगा। या पैटर्न देखना, या पैटर्न देखना कि जो क्वेश्चन पहला वाला होगा मल्टीपल करेक्ट का, वो मैक्सिमम टाइम ईज़ी आता है। पहला क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट का, या फिर कह लो पूरे मल्टीपल करेक्ट में एक क्वेश्चन तो सबसे ईज़ी रहता है, वो क्वेश्चन ना छोड़ना। 5 में से एक क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी रहता है, वो मत छोड़ना, ठीक है? अब आओ, अब आओ, आगे चलते हैं। वाई इज द क्वेश्चन पैराबोला, देखो अब सी देखो, ये पैराबोला और सर्कल को मिला है, यही मैं कह रहा हूँ, पैराबोला एलिप्स या फिर पैराबोला सर्कल को मिक्स करके क्वेश्चन देगा, ठीक है? ये अगेन देखो वही एप्टीट्यूड वाला ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। अगेन इसमें आप मतलब मैथमेटिकली करेक्ट आपके पीछे नहीं जाओगे, आप ऑप्शंस देख करके मैच करा सकते हो। अब ये देखो, ये वेन डायग्राम को पॉलिनॉमियल है, सपोज द रूट ऑफ एफ एक्स आर जीरो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्वेश्चन है। ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको आईआईटी के उसमें बताया था। ओनली मैथ्स में की बात कर रहा हूँ मैं, और बाहर की बात नहीं करूँगा। हाँ, और देखोगे तो यहाँ पर ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहाँ बताया था, आईआईटी के आपके वन शॉट में। सेम कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर ये तीनों रियल है तो पी प्लस पी डैश एक्स जीरो। अगर नहीं विश्वास हो रहा है, अगर मान लो नहीं कि समझ में आ रहा है कैसे करें, तो आप इसको फिर क्या करो, देखो जैसे मैं बताया था कि एग्जाम्पल लेके अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो जैसे क्या दिया हुआ है कि सपोज द एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, p dash x for px a polynomial whose coefficient are real, suppose the roots of px equal to 0 are real, ठीक है? तो पहला क्या दिया है, रिपीटेड रूट्स ऑफ px इक्वल टू 0 आर आल्सो रूट्स ऑफ, जैसे अगर ये px दिया है ना, रिपीटेड रूट्स आर 0, तो हम एक px को मान लेते हैं जिसके पास रिपीटेड रूट हो, ये हमने px मान लिया, इसको हमने px मान लिया, इसके रूट्स निकाले, क्या है, -1 आया, मैंने p ऑफ -1 प्लस p डैश ऑफ -1 निकाला, देख ले 0 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर कोई पॉलिनॉमियल क्वेश्चन में बोल रहा है तो वो पॉलिनॉमियल अपने से लेकर के चेक करने लगो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, वरना प्रोसेस वाइज जाओगे तो कर ही लोगे। सिंपल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था ये, 3 इवेंट दिए हुए थे, अगर आप वेन डायग्राम बनाना जानते हो तो आप बहुत आराम से कर लेते इस क्वेश्चन को। वेन डायग्राम बनाना नहीं जानते तो भी फॉर्मूला याद है तो कर सकते हो, वरना आप बहुत आराम से इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। नॉट टफ डील, ठीक है? तो इनके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा कैटेगरी और एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, देखो देख लो, इनके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, देखो चलो आओ। एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, मीडियम में वन, ये क्वेश्चन देखो, ये इज इजी, ठीक है? तो मैं आपको एक लिस्ट करके दिखा दे रहा हूँ इसी में, मीडियम में वन, इजी में वन, ठीक है? आगे चलते जाओ। ये क्वेश्चन इज ऑन अ टफर साइड, ठीक है? क्योंकि इसमें डायग्राम बनाना और एप्टीट्यूड का अच्छा खासा खेल है। ये आओगे तो ये अगेन ऑन अ टफर साइड है, +1। ये इजियर साइड पर है, इसको इजी पे रखूंगा, क्योंकि देखो आईआईटी में इजी बताना और नेक्स्ट में अलग बात है। मैं अकॉर्डिंग टू ये एक और इजी क्वेश्चन, +1 ऑन इजी। ये एक और हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन जिसमें सोचना पड़ेगा, तो ये मीडियम में रखते हैं। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगेन मीडियम में रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको मैनिपुलेशन लगना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये एक टफर साइड का अच्छा क्वेश्चन है, +1, एक टफर साइड का अच्छा क्वेश्चन है। ये अगेन फिर आप देख लो, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये वाला, ये करना चाहिए था सबको जो उस समय बैठे होंगे। आ, ये अगेन देख लो, पहला है हिट एंड ट्रायल से होगा, मतलब दिमाग तो करना पड़ेगा, पर हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, प्रेटी इजी। अगर आप देखोगे तो क्या करना था इसमें, सी दिया हुआ था और पैराबोला दिया हुआ था और के एन के टू मतलब देखो, पैराबोला कुछ सर्कल, इसका डायग्राम बना लेना, ठीक है? सर्कल कुछ ऐसा आ रहा था,
ऐसा आ रहा था और पैराबोला कुछ ऐसा आ रहा था। अब इस पैराबोला को ऊपर या नीचे शिफ्ट किया जा रहा है, कैसे? ये एक्स के थ्रू, ठीक है, सॉरी के थ्रू, और पूछा जा रहा है कि कब इसका क्या होगा। तो वो सारी वैल्यूज आप अगर ग्राफ बना लेते तो आप कर ले जाते, ठीक है। तो ये ऑन अ ईजियर साइड क्वेश्चन था, तो इसको ईजियर साइड पे एक और वन कर दिया, ठीक है। और ये एक और टफर साइड क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें अच्छे खासे एप्टीट्यूड की जरूरत थी। और ये पॉलिनोमियल पी एक्स अगेन, दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो आओ, अब आपको इजी, मॉडरेट और हार्ड का मैं दिखा देता हूँ क्या। हाँ, 2022 का थोड़ा सा पेपर तो टफ था ही, ठीक है। अब रुक जाओ, मैं आपको इजी, मॉडरेट, टफ का पूरा वो करवा देता हूँ। वेट अ मिनट, देखो इजी, मॉडरेट, टफ का मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। देखो फाइनल स्ट्रैटेजी टाइम, ठीक है। अब फाइनल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर फॉर नेक्स्ट। देखो, ओ सॉरी, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर फॉर नेक्स्ट, फाइनल है ये, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है ये। आ जाओ, ध्यान से सुनना, ये लास्ट मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, पेपर की स्ट्रैटेजी का पहला काम वही होगा कि डोंट स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन स्ट्रेट अवे, जस्ट वेट, गो थ्रू द एंटायर क्वेश्चन पेपर वंस, then start solving. Don't start doing question from the first question itself. Go through the whole question paper, go through the whole question paper, after that start doing, ठीक है। अच्छा, see, again you'll have some easy questions, some moderate questions, and some tough questions out of your 17 questions. Out of your 17 question, this is the prediction that around four questions will be easy. Yes, one shot notes will be provided. So around four questions will be easy. Around you can say that five questions for here, if I say the tougher side questions, if I'm not wrong, then four questions will be hard also. Hard, what it means, it will require aptitude. It will require aptitude. And medium question, if you see the rest, all the nine questions, I guess nine questions will be medium questions. This will be your strategy. Now, dear students, what Nest want from you? Nest wants for an average student, Nest want from an average student to solve 6 to 7 questions. What Nest want? Nest wants average students to score from between 6 to 7 correct answers. At least, at least, of course, it will be high. They will be very happy if they'll get 17 questions correct. But they want these many questions at correct exactly. How? Because since they are giving you how many? Four easy questions and nine tough, nine medium questions. They want you to at least solve three or four medium level questions. Hence, you'll be able to solve 6 and 7 questions. Dear students, when you are going through paper, list down 494. 4 means easy, 9 means moderate, and 4 means tough. So instead of writing 494, because it will create confusion among tough and easy, this time you can easily write it as EMT. EMT, simply EMT. Don't write easy, moderate, or tough. Write it as EMT. E means easier side questions which you have to attempt first. M means medium level question which you have to attempt second, like secondary. And T are the tougher questions which you have to perform once you see that your time is left after performing all the questions. One more important thing, while assigning EMT, always remember that the aptitude questions which require kind of your aptitude, like you have to hit in trial or you have to go through the option or you have to do something like that, don't put it into tougher side. Always put it into the medium side. Why? Because they are not tough, they are looking tough, right? They require your aptitude. How to understand that the question is from aptitude? The only way to understand that the question is from aptitude is that what? That that question will not take use of, that question will not take use of what? That question will not take use of your what you say, mathematical formulas and thinking.
If a question is there which is not requiring your mathematical formulas and thinking, just straight away understand that the question is from aptitude section. You have to perform hit and tell, you have to do something or here and there, right? Always keep it in the medium section. Mathematical question which are tough in the first side, just keep it in dirty. So this was it from my side, dear student. This was the strategy I wanted to give you. I hope so you people will follow it, and I hope so it will work for you also. And so that's it from my side, dear students. That's it from my side. Thank you so much, dear students. Thank you so much, and all the best for your next examination. Follow this EMT strategy. All next want from you is 7 question. If you are solving 7 question, you are far apart, right? Don't worry. Stay calm. Keep solving. Thank you so much. Thank you so much, dear students. Bye bye, and all the best for your next examination. Thank you so. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।